Good morning. Good morning, Kumud. Good morning, Mudita. Good morning. Good morning. Welcome to the call. So, how's your assignment going on? How was yesterday's assignment? The magic mirror. If you want to share or ask anything. Yeah, can I say something? Yes, please. Uh, I lost my both the in-laws, my father-in-law and mother-in-law, and I don't know why. Yesterday, I saw myself in the mirror, and deep inside, and I started getting blessings from my father-in-law. I could literally see his hand for a few seconds over my head, just giving me blessings. How could that be? And I had tears in my eyes. Hmm. So I couldn't. I mean, I was very happy. Of course, you got blessings from him, Hmm. but I don't know how did this come up. So, how old are you married? How many years? I've been married for 33 years. Okay, and how long back you lost your in-laws? I lost my father-in-law, say maybe 6, 7 years back. Okay, and how was your relationship with your father-in-law? Very good. Yeah, and when you lost him, what was your experience? No, because he was unwell. So Hmm. of course I did lot of. मतलब होता ही है ना कि आप उनकी सेवा करते ही हो. Although you Hmm. had nurses, everybody with you, but I'm from Bombay and I'm married in Delhi. But Hmm. every time, even for 7, 8, I think for 8 years or 10 years, he was unwell. But Hmm. whenever I went to Bombay, just after 2 days, when I would get a call, Brita, dad is calling you. You have to be here. He is not well. Hospitalized हो जाएंगे या कुछ हो. He had a paralytic stroke. Hmm. So then, कुछ भी होता, he would say, नहीं 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 नहीं, मुदिता तुम वापस आओ, call her back, call her back. I hardly went to Bombay in this last 7, 8 years since he was unwell. Hmm. Yeah. Of course, he depended on me also. When I kuch bhi ho, so where am I? Where am I? It was like that. Yeah. Besides everybody being there. And what was your experience when you were not going to Bombay so often and being there with your father-in-law in I his? never felt bad कि why did he call? Mummy would say कि अभी तुम आइयो. मैंने कहा क्या करें मम्मी पापा, how is it? Then she would say नहीं नहीं नहीं, go, you're more required there. Yeah. So whatever your relationship with your father-in-law was, It's good. it I was always had a it, good it relationship. was a very blissful relation, like in which you were there for him and he was totally there for you. Yeah, that's true. He Yeah. was also Yeah. And even what? in his good health also. He was with me all the time. Yeah. So it's been a long relationship of 33 years. Uh-huh. Like when you get got married, उसी टाइम से वो आपकी लाइफ में आ गए ना. Right. And in this time, whatever, see, when I say mirror, mirror means mirror is a reflection of who you are, what you are having, what you are not having, for what you are grateful, for what you are ashamed of, for what you are proud of, for what you are guilty of. So if you are in the mirror, मैं जैसे mostly if I train people, I say mirror never lies. It never lies. आपको उसके साथ रहना है, उसके साथ बात करना है, उसकी आंखों में देखना है, and you will see the whole life of yours in front of you. I Right? could actually feel a lot of things. Yeah. I even said sorry to my mother-in-law earlier. I said, "Mummy is so strong. She was a very strong personality." But Yeah. yesterday I said, "Mom, whatever you did, that time I didn't realize. But today I realized it was all good what you did for me." Yeah. And you might have been a little grateful about her. Yes, I did say thank you and grateful to her. Yeah. I Yeah. did. Yeah. Because sometimes people ask me, मतलब जो लोग नहीं हैं आप क्या उनके लिए कर सकते हैं? I always say yeah. Because any can we mute everyone please? There's a lot of noise. Except Mudita. Okay, 1 second. Okay, I have mute everyone. मुदिता आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, या शायद मुझे करना आता है. I think I have done it. मुदिता Okay. आप बोल के देखिए. Can you speak?
Yeah, I can. Okay, so everyone who want to speak, you can unmute yourself and then you can speak. Okay, so Mudita, as you were experiencing when you were in mirror, you, in the beginning, you might be saying only thank you to yourself, or you Yeah. might have said something कि आप अपने लिए क्यों grateful हो, या Hmm. अपने आप को बता रहे थे कि I'm grateful to you because whatever, whatever. So Hmm. this is just the beginning of being in a wonderful relationship with the person in the mirror. जो जैसे कई बार हमारे को लाइफ में बिकॉज इट्स अ बिगिनिंग आई कैन नॉट से हाउ डीप यू कैन गो, बट कई बार लाइफ में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ ब्रेक डाउन आते हैं और हमें समझ नहीं आता किस रास्ते जाएं या क्या आंसर है इसका. तो द बेस्ट आंसर यू कैन हैव is from the person in the mirror. Now that's a whole practice कि आप उसके साथ कितने कंफर्टेबल होते हो, कितना उसके साथ आप प्यार में ग्रैटिट्यूड में रहते हो ताकि वो आपको ट्रूथ आंसर करने शुरू करे. अगर आप एक झूठ की जिंदगी जी रहे हो, आप झूठ बोलते हो या आप प्रिटेंड करते हो, डिस्गाइज में रहते हो या कहते कुछ और हो करते कुछ और हो, यू बी इन द मिरर, you stay with that person, you will see all the inauthenticities of your life. Whatever is not what you are, it will show you. So similarly, when you were in the mirror, you may or slowly even I won't suggest कि आप इसको थोड़ा लोगों के सामने कभी करना, but being alone, give yourself like 10 minutes 20 minutes, and you can talk to the person in the mirror. एंड अभी तो आपने सिर्फ देखना और थैंक यू करना, ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया है. तो जो जो आपकी लाइफ के वो मोमेंट्स थे जहां पर आपको लगा है कि उस इंसान को आप और भी कुछ कहना चाहते थे या ग्रैटिट्यूड करना चाहते थे या कुछ भी, वट एवर इज इनकम्प्लीट, इट विल शो अप. Wow. सो इट विल शो अप लाइक आपका अगर फादर इन लॉ आपको ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं एज यू सेड, सो यू विल फील हिज ब्लेसिंग्स विद यू. इफ Yeah, योर I मदर, saw his hand over my head for a few seconds, not even just a second. It was more than a second, like, and I was so happy. I had tears in my eyes when this happened. एंड जब वो जिंदा थे तो वो आपको सिर पे रख कर देते थे ब्लेसिंग. हाँ हाँ हाँ. हाँ, कभी नहीं because नहीं, ज्यादा का पीठ पे ऐसे, और कभी कभी ऐसे ही खाली हाँ, सिर पे भी, मतलब दोनों तरफ. whatever हाँ. experience of your life is there, and if you're longing for it more, it will be there. Whatever experience of life is there, जो आपको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये मेरे को नहीं चाहिए बिल्कुल, even that will be there in the mirror. So जो हाँ हम हाँ. बताते हैं ना कि जिस चीज को आप कहते हो मेरे पास आए आए, और जिस चीज को कहते हो ना आए ना आए, so whole world is inside you only. आपके अंदर ही तो है. तो आपके Right. मिरर में it will be reflecting to you. Reflecting to you is not in a illusional way, reflecting to you in emotional way. I could feel it yesterday. Yeah, and And after this 2-3 incident, then I didn't feel like seeing more into the mirror. I was very happy after the blessings. yeah, so whatever, if it's working for, and at the same time, whatever feelings you have, you can be grateful about it. Like some people may feel a little जैसे आपको अच्छा लगा, किसी किसी को बुरा भी लग सकता है, like about कुछ कुछ अपने बारे में ऐसी चीजें होती हैं which is not very pleasant. हाँ. So at that time also I say you need to be only grateful कि उस सिचुएशन ने आपको क्या सिखाया, उस सिचुएशन में आपने अपने लिए क्या क्रिएट किया, जो भी वो सिचुएशन थी. एंड जस्ट सी किस किस चीज को आप और ग्रेटफुल हो सकते हो. सो ऑल द बेस्ट फॉर अ ब्यूटीफुल Thank जर्नी. you. Thank एंड you so much. एज दिस चैप्टर कम्स इन ऑलमोस्ट सेकेंड एंड, मतलब 27 चैप्टर पे आता है, बिकॉज to come to this chapter you really need to be a lot of gratefulness inside you, and finding gratefulness in every situation, in every person around you, whether those situations are negative, persons are negative, or whatever, positive or negative. So so those people who really want to go further and further in this mirror practice or magic mirror, so keep doing it, keep doing it. Matlab you never know you will reach which level. So all the best. Thank you so much. Thank you, Mudita. Okay, Good so if, morning. good morning, I'm Kamachi. Rachna here. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. I'm Rachna here, ma'am. Good ओके morning. ओके, रचना जी, यस, वेलकम. Thank you. Yesterday, for the first time, uh, I literally loved myself. मैंने एक mirror में अपने आप को kiss भी किया. Like Wow. I was grateful for myself for having been who I am. I was really, really almost in awe of myself. कि
thank you so much for being so calm in life. And I literally gave myself almost about 100 kisses. I thought it Wow. was unnatural, but I did it. Instantly, I went right up to the mirror and I kissed myself a number of times. I think you deserve more than 100 kisses But for I did yourself. it. But I did it, and I felt very happy. Yeah, that's I mean, beautiful. Like, I mean, the person in the mirror is your best friend. Like, I really always say, like, love that person like anything. Talk to that person like anything. Share with that person yes. like anything. Like when you're sharing with that person, it, matlab, to my surprise, when my participants share with me while doing this, वो जिस सच को सच मानकर पूरी जिंदगी जिए जा रहे हैं और वो जब उसी सच को अपने पर्सन के साथ शेयर कर रहे हैं मिरर में, there comes a Mm, level of togetherness or bonding. That person in the mirror right away answers, no, this is not you. Whatever you're saying, whatever you're doing, it stops responding. There comes a level कि आपकी सच्चाई भी आपको दिख रही है, आपका झूठ भी आपको दिख रहा है. So that's a level, like level. But to reach that level, the beginning is to be in love with that person in the mirror. yes, And as you're yes, saying, like you were complimenting yourself, kissing yourself. yes. I mean, you can start from anywhere. Those who are just beginners, like those who are not easy to be with in the mirror, like just look in. सबसे पहला जो इसका रिक्वायर है वो है आंखों में आंखें देखना. आंखों में आंखें डालकर पहले देखो अपने आप को. हो सकता है आपकी आंखें लेफ्ट चली जाएं, राइट चली जाएं, आपको देखने में थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा. कई लोगों को होता है ये, मतलब आई हैव सीन इन द पास्ट. एंड आपकी आंखें बार बार नीचे जा रही हैं या लेफ्ट राइट इधर उधर घूम रही हैं, तो यू नीड टू ब्रिंग बैक योर आईज टू द पर्सन इन द मिरर एंड सी दैट. एंड धीरे धीरे उसको आपने देखना है. सपोज अगर आपको लगता है कि आपका रंग सुंदर है, तो कितना ब्यूटीफुल कम्प्लेक्शन है, कितना ब्यूटीफुल फेस है, कितनी सुंदर तेरी आईज हैं. ये आईज कितनी सुंदर है जो तेरे को दुनिया दिखाती हैं. अगर आप बाहरी Mm, सुंदरता की बात नहीं करना चाह रहे हो, तो उसकी यूजेबिलिटी की बात करनी शुरू करो. समटाइम्स पीपल फील ऑकवर्ड कॉम्प्लीमेंटिंग देमसेल्फ. तो ठीक है, आप आंखों को किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हो कि मैं इस उम्र में या इस हालात में या इस हेल्थ के स्टेटस के अंदर भी, मतलब कि आप मेरे को बुक पढ़ने में इतनी हेल्प करते हो, मेरे को मेरे काम करने के लिए हेल्प कर. येस्टरडे आई वाज डूइंग दिस प्रैक्टिस, तो शीशे में मेरे को मेरी फिंगर्स भी दिखी. तो मतलब मैं फिंगर्स के लिए आधा घंटा तक, मतलब इसकी वजह से मैं सारे दुनिया के काम कर सकती हूँ, कंप्यूटर चला सकती हूँ, फोन चलाती हूँ, मैं कपड़े पहनना उतारना, लाइक एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, कुकिंग करना, ड्राइविंग करना, राइटिंग करना, इवन मैं व्हाट्सएप के ऊपर भी टाइप करना है, एवरीथिंग. आई केप्ट ऑन सेइंग कि उंगलियां हैं तू, कितना प्यार yes, करती है, yes, कितना काम करती है, मतलब मैं जब से पैदा हुई हूँ तब से अब तक तू कितनी मेरे लिए मेहनत करती है. मतलब yes. आप ये सोचो, उंगलियों जैसी चीज के लिए भी हम कभी थैंक यू नहीं बोलते. और एक दिन Very true. इमेजिन करके देखो उंगलियां काम करनी बंद कर दे, Mm, yes, then what's the world around us? yes, So this mirror practice gives you more and more opportunities to be in love with you, firstly. And once you are really accept yourself the way you are and the way you are not, अगर आप एक भी इनऑथेंटिसिटी में हैं, तो आप उस स्टेज से आगे नहीं जा पाओगे मिरर वर्ल्ड के अंदर. इनऑथेंटिसिटी क्या होता है कि आपके सपोज आपके सिर पे बाल नहीं है और आपको ये बात का अंदर से अपसेट है कि मेरे सिर पे बाल नहीं है. अब आप सामने बोल भी रहे हो, तू बड़ा हैंडसम है, बड़ा हैंडसम है, पर अंदर से बोल रहे हो कि तू तो गंजा है, तेरे सिर पे बाल नहीं है, तू बदसूरत है, तू सुंदर नहीं है, व्हाटएवर योर एक्सपीरियंस इज, yes, देन द मिरर विल नॉट बी वन विद यू, बिकॉज मिरर नो द ट्रूथ कि आपका एक्चुअल में क्या फीलिंग है उस बारे में, क्योंकि वो इंसान जो मिरर में दिख रहा है वो आप ही हो. yes, So for that reason, in the mirror, you need to say, oh, तेरे बाल, मतलब if I train my people, तो oh, बाल नहीं है, क्या खूबसूरत लग रहा है तू बिना बालों के भी, क्या हैंडसम लग रहा है. बाल तो पूरी दुनिया के पास होते हैं, दुनिया के अंदर 5% आदमी ऐसे हैं जिनके पास बाल नहीं है, बाकी तो देखो सबके सिरों पे बाल है. तो आई एम स्पेशल कि मेरे पास उतने ही yes, बाल है जितने रिक्वायर्ड है. सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्रेस योर ट्रू फीलिंग्स इन द मिरर. एंड देन yes, जैसे अभी मुदिता ने बोला, so this is only because maybe Mudita is already comfortable in the mirror, but she is already in love with herself. So she loves the person in the mirror, the way she is and the way she's not. That's why she could reach the next level or next level with other things. So similarly, just say you started,
So just see, you can just start being in conversation in the mirror, and this practice should not be more than 20 minutes or 10 minutes. That's enough. Yeah, I did speak to myself, and in fact, I even thank myself for the wrinkle that that are coming on the forehead. I always And say, like, wrinkles, we earn wrinkles. yes, We earn it. the Matlab aging. every wrinkle on my face is my earning, because it shows how many experiences I have, how many wisdom I have attained in my life. So that's a beautiful thing to be really proud of. Yes, definitely. And then the thought that kept coming to my mind was that, like, my kids keep pumping positivity in me by saying, "Mom, you're the best. You're the best." So I also kept saying, "You're the best. I love you." And I Yeah. gave a lot of kisses Yeah. to myself. Okay, and keep doing it every morning. You wake up, everyone, like, welcome to the call, everyone who has just joined us. Every morning you wake up, look yourself in the mirror, the first thing. मतलब बेड से उतरते ही, जैसे बेड से उतरते ही जिस चीज के लिए आप थैंकफुल हैं, मिरर में जाते गिव योरसेल्फ a lot of love, a lot of kisses, flying kisses, whatever you feel like, and make that person really happy and proud of who he is. And Thank you. everyone among Thank you. us on this call has so many reasons to be proud of. You don't even know, like, how much you are special, you are wonderful, you are fantastic. And be in that, आप मिरर में थोड़ा दिन का रहेंगे तो आपको खुद अपनी महानता दिखनी शुरू हो जाती है. So don't shy away. Sometimes people say, sometimes I have heard it in the past, so ये तो सेल्फ ऑब्सेशन जैसा फील हो रहा है, या ये तो थोड़ा पागलपंती सी लग रही है, क्रेजीनेस लग रही है, थोड़ा सनकीपन लग रहा है. अगर ये कुछ भी लग रहा है तो बहुत बढ़िया है, लगने दो. जो लग रहा है लगने दो. पर अगर आपने खुद को प्यार करना शुरू कर दिया, खुद को एक्सेप्ट कर लिया, द वे यू आर एंड द वे यू आर नॉट, बिकॉज यू आर सपोज टू बी दिस वे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप ऐसे ही बनने के लिए इस धरती पे आए थे. और उसी उसी चीज को जब आप एक यूनिक पर्सन की तरह, एक स्पेशल पर्सन की तरह एम्ब्रेस कर लेते हो, उसका ग्रेटिट्यूड करते हो फॉर फॉर एवरीथिंग दैट person in the mirror is for you, you will enter a total new world. So start loving yourself, and then love starts pouring in and starts pouring out as well. Okay, so all the best. Thank you. Thank you, Kumarji, for sharing. Thank Okay, good morning. good morning. पंकज this side. Yes, Pankaj. आज में जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था कल, और मैंने एक सेकंड होल्ड कीजिएगा पंकज. I really invite new people who are not speaking on this call, please wave your hand and speak. Because tomorrow is the last session, and tomorrow is a very wonderful session, how to continue this blessing journey. So please, आज एक तो आपने share जो करना है, please share and please read. अपने आप को nominate कीजिए new people. And at the same time, I really request you to give a little video of yours. अगर आप अभी आज आपको opportunity नहीं मिल पा रही या आप नहीं share करना चाहते, at least make a small video. And जो भी आपने कोई एक छोटी सी चीज भी अनुभव की हो जो कि आपके लाइफ के लिए एक नया एक्सपीरियंस है, गुड एक्सपीरियंस है, प्लीज दीजिएगा. हमारे लिए बहुत बूस्ट रहेगा, मोटिवेशन रहेगी इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए. सो जो लोग शेयर कर रहे हैं उनको तो थैंक यू, और जो लोग नहीं शेयर कर पा रहे हैं, प्लीज गिव अस वीडियो ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. थैंक यू. यस पंकज. गुड मॉर्निंग. जब मैं प्रैक्टिस कल कर रहा था, इससे पहले भी मैंने करी है प्रैक्टिस, बट काफ़ी पहले करा था, तो मेरे को कई बार ये फील आता है कि ये जब मैं मिरर में बात कर रहा हूँ तो ये है कौन बंदा, इज इट मी, और मैं हूँ तो मैं कौन हूँ, इज इट माई सोल, और सो मेरे को ना ये रहता है कि कई बार तो लगता है मैं कुछ हूँ ही नहीं, और कई बार लगता है कि मेरी सोल है कि कौन है. सो आई गॉट, जब मैं कल दोबारा से कर रहा था एक्सरसाइज ये, तो अगेन आई डिड इट, एंड देन I started thinking कि ये कौन है कौन नहीं है. मतलब I did the exercise, but at the back of my mind it was also there. So वो मेरे को क्लियर नहीं, पहले भी क्लियर नहीं होता था, बट ये कल दोबारा से एक बार उभर कर आया कि ये कौन है, तू कौन है. तो क्वेश्चन क्या है आपका? जब मैं मिरर में कर रहा हूँ, अपने आप को बोल रहा हूँ, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दे रहा था, अपने आप को ग्रेटिट्यूड कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि मैं ग्रेटिट्यूड कर किसको रहा हूँ, ये मतलब मैं कौन. पंकज, अभी जो आपने स्टार्टिंग करनी है ना, यू नीड नॉट टू गेट इनटू एनी इंक्वायरी राइट नाउ. अभी आपका वो इंक्वायरी तक जाने का टाइम नहीं आया है. अभी तो आपका जो फर्स्ट लेवल है ना, वेयर यू नीड टू बी रियली इन लव विद द पर्सन इन द मिरर. जी. अभी आप सोचो कि सपोज घर में कोई छोटा बच्चा आया है या पैदा हुआ है किसी का, आप उस बच्चे के लिए इतनी इंक्वायरी मत करो प्लीज कि ये कौन है, कहाँ से आया है, कैसे आया है,
क्या है, क्या करेगा, इतना जी। मत सोचो। अभी अभी उस बच्चे की हंसी के ऊपर खुश हो, उसके लिए प्यार करो। कितना प्यारा बच्चा है, कितने खूबसूरत आंखें है, कितना खूबसूरत हाथ है। तो ओके। उसी तरह से जो मिरर में आपको इंसान दिख रहा है ना अभी आपके साथ, उसकी एक्वेंटेंस, उसकी जानकारी, उसकी दोस्ती यारी इतनी कम है कि प्लीज ज्यादा इंक्वायरीज में जाने की जरूरत नहीं है। ओके। अब यू ओके, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस आप अभी अप्रोच। फिलहाल सिर्फ उसका ग्रेटिट्यूड करने की प्रैक्टिस कीजिए। ओके। ठीक है, मतलब वंस यू आर, एक बार उसका पूरा का पूरा व्यक्तित्व, उसका अस्तित्व आपके शुक्राने से, थैंक यू से, ग्रेटिट्यूड से लबालब हो जाएगा ना, सिर से लेके पाँव तक, वो हर चीज के लिए, मतलब वो इतना खुश हो जाएगा, इतना आपके आपके शुक्राने को सच में एक्सेप्ट करेगा, वो अपने आप आपके आंसर्स देने शुरू कर देगा। ठीक है उस जी। सूखी धरती पे प्लीज उम्मीद भी मत कीजिए कि इस समय कोई पेड़ उगने की चांसेस है। आपने, अब कितनी उम्र है आपकी इस समय, मैं मतलब 47। 40 प्लस आप हैं, जी। तो आपने अपनी पूरी उम्र में क्या 40 बार भी उस इंसान का शुक्रिया करा है शीशे में? हाँ, 40 टाइम्स नहीं होगा, नहीं। तो इन द सोचिए मिरर नो। 40 साल की ज्यादा आपकी जिंदगी है। वो इंसान रोज आपके लिए सुबह उठता है, काम करता है, आपके रिश्तेदारी हो, आपकी दुकानदारी हो, आपके हर चीज के अंदर जी जान लगा के काम कर रहा है, हर समय गालियां खा रहा है कि तेरे बस का कुछ नहीं है। तुम भी कहते हो, दुनिया भी कहती है, जी। हर कोई उसको उसको जो उसको बना दिया है। तो अभी आप ना उसको बहुत पानी पिलाने की जरूरत है, उस धरती, सूखी धरती पे अभी बहुत पानी डालना है आपको। जी। तो अभी प्लीज आप सिर्फ इतना कीजिए कि उसको इतना ग्रेटिट्यूड दीजिए, उसको देख देख के कि उसकी आंखों में से आंसू आना शुरू हो जाए कि शुक्र है पंकज ने मुझे प्यार दिया, कि पंकज को मेरे लिए थैंकफुलनेस आई, धन्यवाद आया। जी। ठीक है, प्लीज अपने लॉजिकल माइंड को शट शट कर दीजिए। अगर बार बार ऐसा क्वेश्चन आता भी है ना कोई आपको, जो जी। कि ग्रेटिट्यूड की दुनिया से अलग का क्वेश्चन है, उसको कहिएगा शट अप। अपने आप को ना शट अप करना सीखिए। ठीक है जी। एंड जो मिरर में पर्सन है उसको प्यार करना सीखिए, उसको ग्रेटिट्यूड करना। अपने अपनी बॉडी में अगर आपको बेली फैट भी दिख रहा है, आपको अपनी टमी दिख रही है, टमी को पकड़ के बोलो वाओ, ये दिखाती है, मतलब आपको, मुझे नहीं पता आप किस चीज से ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। अगर मैं होती उस जगह पे तो मैं बोलती वाओ तू कितनी खूबसूरत है मेरे मोटे पेट, इससे पता चलता है मैं कितने खाते पीते घर की हूँ। it shows me the richness, the wealth, the real wealth, like कि मैं कितना खाती पीती हूँ, मेरे को कितना कुछ अवेलेबल है, इसके लिए शुक्रिया। मेरे को इतनी अच्छी हेल्थ देने के लिए शुक्रिया, इतनी अच्छी स्किन देने के लिए शुक्रिया। मैं I was talking to with my husband yesterday, and I was talking to him कि आप कितने टाइम करते हो, या we were just sharing, and he just shared मैं तो सिर्फ नहाने के बाद करता हूँ। तो नहाने के बाद मैं अपने आप को शीशे में देखता हूँ, सिर से लेके पैर तक मैं पूरा नाचता हूँ, खुश होता हूँ। जैसे कहते हैं ना, अंग प्रत्यंग से खुश होना, मतलब रोम रोम रोमांचित होना। आई मीन ये सारे शब्द ऐसे ही नहीं बने हुए हैं, ये शब्दों का कुछ अर्थ है, कुछ सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में। आपके एक एक बॉडी पार्ट के लिए, मतलब every, be it your functional parts, be it your internal parts, be it your sexual parts, be it your working parts, be it your operational parts, जो भी आपके body parts है, ये आप हो। उसको अगर आपने एम्ब्रेस नहीं किया, आप ही उसके लिए एक अलग सोच रखते हो। कई बार आप ही अपने खुद के बॉडी पार्ट्स के लिए एक जिसको हम कह सकते हैं कन्वेंशनल सोच होती है कुछ, या रूढ़िवादी सोच होती है कुछ, जी। क्योंकि हमें ट्रेनिंग ही नहीं मिली है, किसी ने बताया ही नहीं आज तक हमारे को। सारी बीमारियां, सारी हमारी डेफिशिएंसीज, हमारी इनएफिशिएंसी इसलिए है कि हमने उस बॉडी पार्ट को इतना प्यार नहीं किया, हमने उसका ग्रेटिट्यूड नहीं दिया। अगर यूट्रस के अंदर एक बच्चा पैदा करने में एक लेडी को प्रॉब्लम आ रही है, ये यूट्रस में फाइब्रॉइड्स आ रहे हैं, क्योंकि हमने अपने माता बनने के लिए, अपनी माँ बनने के लिए उस भगवान की नियामत का शुक्राना करने में बहुत कमी रखी है, हमने करी है। अगर किसी की सेक्सुअल जिंदगी के अंदर वैसी वैसी एफिशिएंसी नहीं है जितना कि वो ड्रीम करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने खुद के सेक्सुअल ऑर्गन्स को कभी ग्रेटिट्यूड ही नहीं किया, प्यार ही नहीं दिया, उसकी शुक्राने ही नहीं करे कि उन्होंने हमारे को कितना इस जिंदगी के अंदर हेल्प करा है। So my request to everyone on the call is, please don't go to that second level or third level. No, you need not to go right now. Just be in the mirror, look at yourself. If you are with clothes, it's great. If you're without clothes, it's great. It's your body. Please understand, it's you in the mirror. So you're not to be ashamed of anything. It's you in the mirror.
Look at yourself, look at your shoulder, look at your arms, look at your every part of the body, and give some gratitude, give some love, give some really happy love to it. So that's the person in the mirror. He needs your love. Please give it. Thank you, Pankaj, for bringing it up. Thank you. Thank you. Thank you for your question. Okay. Any other question before we go ahead? Good मैम morning, मैं ये ma'am. पूछ I'm रहा था Rachna आगे here. का क्या बनाया? One second. Okay. जो हिंदी में पढ़ रहे हैं, please nominate yourself. There was a women voice. Please take your name. Rachna ma'am here. हाँ Good जी. morning. Good morning, Rachna. मैम कल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. शुरू शुरू में तो लगा कि क्या हो रहा है ये, जाके थैंक यू बोलाई और बहुत बारी किया मैंने इसको. गई थैंक यू बोलाई, गई थैंक यू बोलाई. फिर ऑल ऑफ सडन एक बारी वहां अटक गई और लगा कि अपनी ब्यूटी को तो कभी एडमायर ही नहीं किया. सो उसको बहुत एडमायर किया एंड फुल ऑफ लव विद मी. Yeah. सो दिस इज माय एक्सपीरियंस. बट थोड़ा सा मिरर ने मुझे कुछ और भी इंडिकेट किया, और वो इंडिकेशन ये थी कि मेरे को अभी अपने ग्रेटिट्यूड की स्केल को बहुत 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 बढ़ाना है. दिस इज द इंडिकेशन फ्रॉम द मिरर फॉर मी. वो आप जरूर करें. एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल दैट यू आर बीइंग कंफर्टेबल इन द पर्सन इन द मिरर. बट मिरर ने जो अभी आपने बोला है, तो मैं बता देती हूँ मिरर ने आपको इंडिकेट क्या किया है. हाँ जी. मिरर ने आपको बोला है, जो तू अपने आप को हमेशा कहती रहती है ना, यू आर नॉट गुड इनफ. यस. सो मिरर, अभी आप फर्स्ट लेवल पे है ना. आई हैव क्रॉस सो मेनी लेवल्स, सो आई नो किस सिग्नल पे वो क्या बोल रहा है. सो आपके मिरर ने ये बोला है आपको. So stop keep comparing yourself and keep beating yourself, Rachna ji. यस. आपकी लाइफ का जो ड्रिवन जो आपने एक दे रखा है ना, एक स्टेटमेंट, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ. अभी मैं ब्लेसिंग्स तो कर रही हूँ, पर अभी और भी बहुत करनी है. अभी ब्लेसिंग्स को और नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है. अभी जो कर रही हूँ, दिस इज नॉट गुड इनफ. तो अपने आप को मिरर में बोलना शुरू करना है आपको कि यू आर द बेस्ट, यू आर परफेक्ट द वे यू आर एंड द वे यू आर नॉट. जितना पढ़ा लिखा बहुत किया आपने अपने लाइफ में. अपने आप को इस चीज के लिए थैंक यू कहना, ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो. आपकी बॉडी ने, आपकी पूरी इस लाइफ में आपने बहुत कुछ किया है, बट स्टिल योर एक्सपीरियंसेस, दिस इज नॉट इनफ, दिस इज नॉट गुड इनफ. So this is a new beginning of your life. The day you will be comfortable with this aspect of your life, your mirror will show something miraculous. Okay. All the best. Thank you, ma'am. And there are so many experiences in last 27 days. बहुत सारी चीजें मेरी ड्रीम लिस्ट में मैनिफेस्ट हुई. मेरे हस्बैंड ने अभी 2 दिन पहले अपना चेक मैनिफेस्ट किया. सो इट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मैजिक वर्ड. मुझे बहुत, आई एम वेरी ग्रेटफुल. मेरे अपने बच्चे के साथ बात होनी शुरू हुई. Wow. Amazing, amazing. I don't have words to explain it. Yeah. Only gratitude, and the one thing which I realize कि जहाँ पर मैं इतनी मेहनत करती रही उन चीजों को प्राप्त करने के लिए, उन चीजों को ऑल्टर करने के लिए, वो चीजें अब तक नहीं हो पा रही थी. और जस्ट गिविंग द ग्रेटिट्यूड टू एवरीथिंग, एवरी पर्सन, वो चीजें इतनी आसानी से, मतलब विद इन 6 days, विद इन 7 days, वो इतनी खूबसूरत होती चली जा रही. Yeah. So it's miracle, it's magic for me. Yeah. And thanks to you. No, And not any thanks to me. Thanks to the person in the mirror. yes. प्लीज. आपको पता नहीं है आपकी जिंदगी, अगर सपोज आपका अपने बारे में, उस इंसान के बारे में इस मिरर ने कल आपको इतना क्लियरली बताई है ये चीज, आपके फेस पे कुछ ऐसा है फॉर विच
you feel this is not good enough. Okay. अब देखो, अपना आराम से देखो क्या चीज ऐसी है जिसके लिए आप प्राउड नहीं हो, जिसके लिए आप शुक्राने में नहीं हो. Mm-hmm. जस्ट लुक इनटू दैट. आपको Okay, पलट ma'am. के वापस आना पड़ा अपने फेस को, अपनी ब्यूटी को देखने के लिए. some बैरियर इज देयर ना. मिरर में तो वही दिख रही थी, क्यों नहीं दिखी पहले आपको? तो कुछ बैरियर है ना. So, but it's okay. You need not to get into that. Please, everyone on the call, only thing you need to do right now is being grateful. जो जो चीज आपको दिख रही है, समझ आ रही है, फील हो रही है, उसके लिए दिल से ग्रेटफुल. और अगर आप कुछ भी झूठ बोलने की कोशिश करोगे तो मजा आने वाला है मिरर में. चेक करिएगा. मतलब वो इंसान जो मिरर में है, अगर सपोज वो आपको ये सिग्नल दे रहा है रचना जी कि फॉर यू एक्सपीरियंस अबाउट योरसेल्फ इज I'm not good enough. तो ये जो स्टेटमेंट है, ये आपके अंदर की जो एक कमी है या आपके अंदर की बनाई हुई एक एक्सपीरियंस है, ये आप लाइफ में हर जगह अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि ये आप हो. आपका पति आपको लगता होगा whatever he is doing, whatever work he is doing, whatever, I don't know, romantically, emotionally, financially, everywhere your experience about him would have been, it's not good enough. With your son, चाहे वो कितना भी पढ़ रहा हो, लिख रहा हो, मेहनत कर रहा हो, आपके साथ बैठ रहा हो, रिलेशनशिप ट्राई कर रहा हो बनाने के, but your experience with him would have been, it's not good enough. Okay. It's not good enough कई तरह से आपकी लाइफ में अप्लाई होता है, हर किसी के लाइफ में अलग अलग अप्लाई होता है. So just ये आपको सिग्नल मिला है. Now if you really want to alter this, आप अपने बेटे की जिंदगी में कैसे उस चीज को ऑल्टर कर सकते हो, या अपने पति के रिलेशनशिप में कैसे ऑल्टर कर सकते हो, जब आपके ये इसका स्रोत आप हो, आपके अंदर से निकल रहा है. उन लोगों में तो कोई कमी है ही नहीं. आपको जो दिख रहा है इतनी जल्दी जल्दी ये मिरेकल्स दिख रहे हैं जो आपको, या वो चीजें होती हुई दिख रही हैं जो हो रही थी, उनको होने से रोकने वाला कौन था? मैं ही थी मैम. मैंने ही ग्रेटिट्यूड, मैंने तो वही बोला ना कि इन सब चीजों को मैं फिजिकली ऑल्टर करने की कोशिश कर रही थी, बट पर अब मुझे आपको तो खुद ही नहीं पता रचना जी कि आप जिसको ट्राई कर रहे हो, आपके अंदर से आवाज क्या आ रही है. हाँ, वो मतलब नहीं जब तक आपने अंदर से जड़ ही नहीं पकड़ी, आप ऑल्टर किसको कर रहे हो? तो वो कल मुझे जड़ मिल गई ना कि मेरे ग्रेटिट्यूड में ही, हाँ, तो अभी मेरे हम को इसे ग्रेटिट्यूड का स्केल आई नेगेटिवली, हैव टू इंक्रीज. तो अभी मैंने, बिकॉज अगर आप खुद करोगे तो यही बहुत अच्छी अचीवमेंट है कि आपको पता चल गया है कि ग्रेटिट्यूड को और ज्यादा करना है, और ज्यादा करना है, और ज्यादा करना है. पर मैं आपको ये दे रही हूँ अभी नहीं, इसलिए क्योंकि आज लास्ट चैप्टर है, तो इसलिए आई रियली वांटेड कि आप, बिकॉज आई हैव ग्रेट होप्स फ्रॉम यू, इसलिए सिर्फ आपको दे रही हूँ. और कोई होता, अगर किसी से मेरी बात होती, आई वुडंट हैव गॉन दिस फार, बिकॉज यू आर अ टीचर. You have, in your hands there is life of hundreds of students. Yes, ma'am. And I really pray to God कि रचना जी को ये एबिलिटी जल्दी से जल्दी मिले कि वो ये मैजिक की दुनिया को सब स्टूडेंट्स की लाइफ में फैलाना शुरू करें, ताकि वो छोटे छोटे बच्चे बचपन से ही अगर सीख जाएं कि ग्रेटिट्यूड क्या है, ये मैजिक की दुनिया क्या है, तो सोचो उनकी दुनिया में कितनी हरियाली है, कितनी बहार है. जब भी लाइफ में कुछ कमी हो, डेफिशिएंसी हो, कुछ पैसे की, हेल्थ की, मार्क्स की कमी हो, तो उन्हें ये लगना चाहिए कि मार्क्स तो मैं ला रहा हूँ, मैं मतलब अपने मैं कार्यशील तो हूँ, मैं एक्शन तो ले रहा हूँ, पर पहले मेरे को उसके लिए शुक्राना करना है जितने मेरे को मार्क्स आ रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा. तो सोचो उनकी जिंदगी कितनी होपफुल हो जाएगी. ये छोटे छोटे बच्चे किस स्ट्रगल की जिंदगी में जी रहे हैं आज की डेट में, जबकि वो जिंदगी है ही नहीं असली जिंदगी. सो मैं इसलिए आपसे बात कर रही हूँ. अभी अगर आप सपोज एक बच्चे को भी पढ़ा रहे होंगे ना, तो उस बच्चे के अंदर 10 चीजें अच्छी होंगी, तो भी आपको लगेगा इसको और बेहतर बना सकती हूँ मैं, और बेहतर बना सकती हूँ मैं अपने पढ़ाई को, मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ पर मैं और बेहतर पढ़ा सकती हूँ. ओके, सो इट्स ग्रेट, वट एवर यू आर सेइंग, इट्स ग्रेट, यू आर डूइंग ग्रेट स्टफ, बट अपने अंदर की इस वाली सेइंग को कि आई एम नॉट गुड इनफ, कई बार हो सकता है आपके कुलीग्स के साथ भी, जो आपकी बाकी टीचर्स होंगी, कहीं ना कहीं आपको ये फीलिंग आती होगी, भाई इसने तो बहुत बढ़िया कर लिया, या इसने तो ये चीज बड़ी अच्छी तरह से कर ली. तो आप ऊपर से सुपरफिशियल लेवल पे क्या कर रहे होंगे कि अरे मतलब बहुत अच्छा किया, उसकी तारीफ करी, चलो मैं भी करती हूँ. अंदर ही अंदर क्या हो रहा होगा कि तेरे देख, तूने क्यों नहीं किया ये पहले, या तू भी तो कर सकती थी.
तेरा दिमाग ज्यादा लगता नहीं है, यही काम पहले तू कर लेती तो तू ज्यादा बढ़िया बन जाती ना। तो अपने आप को क्या बोला कि whatever you are doing, you are not good enough. So, and this is not the truth. You need to get that this is not the truth. This is just one of the saying you are saying. ये और एक तरह का समझो नेगेटिव फीलिंग है जो पॉइजन की तरह आपकी बॉडी में है। अब इसको हटाने के लिए क्या करना है आपको पता है, इतने इतने महीने ये जो हमने करी है बुक, तो उसको अपनी बॉडी में बिल्कुल सूक्ष्म कर देने के लिए या छोटा करने के लिए हमें किस चीज को मैग्नीफाई करना है? Yes, ma'am. Gratitude and gratitude and gratitude. हाँ, और ग्रेटिट्यूड अबाउट रचना's अचीवमेंट्स। Yes. आपके पास ऐसे हस्बैंड है, इसके लिए जितना शुक्राना करें तो उनकी हर चीज के अंदर आपको अबंडेंस दिखेगी। जैसे मैं शुरू में इस बुक का स्टेटमेंट था, आई रियली नीड टू क्रिएट इट टुडे फॉर एवरीवन। इस बुक का स्टेटमेंट था, जो आपको दिया गया है अगर आप उसके लिए शुक्राना कर रहे हैं तो वो आपको और अबंडेंस में मिलेगा, और जो आपको दिया गया है अगर आपका उसका लिए शुक्राना नहीं है तो जो आपको मिला है वो भी आपसे छीन लिया जाएगा। और ये एक स्टेटमेंट है, आप उसको स्टार्ट कर रहे हो, डीपर एंड डीपर जाते हुए पता चलेगा कि हमें इस दुनिया से दूर रखने के लिए जो चीजें हैं वो हमारे अंदर ही होती हैं। तो आपके लिए आज ये पकड़ के मैंने इसलिए दे दिया है कि प्लीज इस पे जल्दी काम कीजिए और उसके बाद ये बुक स्टार्ट कीजिए अपनी दुनिया में, अपने लोगों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ। एंड आई कैन सी अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पर्सन कमिंग अप who can actually empower this world to the next extent all the way. Thank you, ma'am. Thank you. ठीक है Thank you. रचना जी, thank you for bringing it Thank up. you. All Thank the you. best. Please, Thank you. okay, let's start. Okay, who's reading in Hindi? हेलो Yes. हेलो मैम, हनी, माई सेल्फ हनी। हाँ जी हनी, हाँ जी मैम, मैं रीड करना चाहती हूँ। चलिए शुरू कीजिए। 28वां दिन। 28वां दिन, जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है, आपको ये जानना होता है कि ये अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा ये आपके लिए अदृश्य बना रहता है। चार्ल्स डी लिन, जन्म 1951, लेखक और सेल्टिक लोक संगीतकार। हर दिन होल्ड कीजिए। जादू के साथ यही चीज है, आपको ये जानना होता है कि यह अब भी यही है आपके आसपास। देखिए अपने एक बार चारों तरफ देखिए, जिस भी कमरे में या जगह पे आप बैठे हैं, एक सेकंड के लिए चारों तरफ देखिए। हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। तो यू कैन नेवर 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 एंटर द वर्ल्ड ऑफ मैजिक until unless you know it's there or you believe it's there. सो एक अर्शिया ने शेयर किया था अपने वीडियो में, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, अगर अर्शिया है इस समय कॉल पर, कि वो बचपन से मैजिक फील करती थी। वो फील करती थी कि अरे मेरे साथ जादू हो गया, अरे ये मेरे साथ हुआ, अरे ये हुआ। पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ, कजन के साथ, या बाद में अपने किसी मतलब अपने लोगों के साथ जब शेयर करती थी तो वो कहते थे अरे बेवकूफ है तू, अबे क्या डफरो जैसी बातें करती है। या मतलब ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, पर ये होता है लोगों के साथ। तो व्हेन आई वाज वाचिंग हर वीडियो आई कुड रियली फील कि काफी दुनिया ऐसी होती है जो आप अगर बोलो कि मेरे साथ ये जादू हुआ या मेरे साथ मैजिक हुआ, वो सीधा बोलेगा नहीं ये तो लॉजिक है, ये तो होना ही था, ऐसे 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 हुआ था तो ये तो रिजल्ट आएगा। एंड दैट्स द वर्ल्ड ऑफ लॉजिक्स। आई रियली रिक्वेस्ट यू ऑल अगेन एंड अगेन, उस लॉजिक्स की दुनिया का क्या असर होता है आपने अपनी जिंदगी में अब तक देख लिया है। अब इससे ज्यादा अगर अपनी जिंदगी और लगानी है उस दुनिया में, और लगा लीजिएगा, कोई उसमें हर्ज नहीं है। और उस दुनिया को भी एक्सेप्ट कीजिए, वो दुनिया भी बहुत अच्छी है, हम उसको रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं। पर हम ये कह रहे हैं कि उसी दुनिया में रहते हुए आप जादू को भी अनुभव कर सकते हैं। पर उसके लिए आपको पहले इसके ऊपर विश्वास करना है और ये जानना है कि ये इस समय इस मोमेंट पे जब हम बात कर रहे हैं इस कॉल पे, तब भी हमारी चारों ओर है। और हम मतलब इसके साथ चीज ही यही है कि अगर आप जब तक इसको मानेंगे नहीं, इसको फील करना शुरू नहीं करेंगे, ये आपके लिए अदृश्य बना रहेगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर हैविंग इट इन योर लाइफ। यस प्लीज कंटिन्यू। हैप्पी हैप्पी यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हनी हनी आप अनम्यूट करिए। ओके।
हेलो। हाँ, अब पढ़ना शुरू कीजिए। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो ये हर बार अलग होगा, चाहे आप ये कितनी ही बार कर लें। 1 इस सेकंड, ओके। सो आप में से काफी लोगों ने जब ग्रैटिट्यूड की दुनिया में एंटर किया तो आप में से कईयों को कुछ बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस फील हुई, तरंगे फील हुई, खुशी फील हुई, आंसू फील हुए। तो मेरा आप सबके लिए एक रिकमेंडेशन है, हर दिन अनूठा होता है। प्लीज नेवर एक्सपेक्ट कि जो मुझे तब फीलिंग हुई थी वो अब नहीं होती है, या अब जो हो रही है पहले नहीं हुई है। आपने हर दिन को एक नई शुरुआत देनी है। कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन की तरह नहीं होता, उसी तरह से कोई भी इमोशन या कोई भी फीलिंग भी सेम नहीं होती है। तो यू नीड टू, मतलब अगर आप इस लाइन को दोबारा पढ़ेंगे, हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं वो हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें। तो मेरे इन माय पास्ट लोगों का ये एक्सपीरियंस था कि यार जब हमने शुरू शुरू में ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, शुक्राने शुरू करे, तो बड़ी अच्छी फीलिंग होती थी बॉडी के अंदर, बड़ा लाइट फील होता, सुरसुरी होती थी। अभी आजकल वैसी फीलिंग नहीं होती, मैं शुक्राने तो कर रही हूँ। तो माय रिकमेंडेशन टू यू इज, प्लीज आप शुक्राना शुक्राना के लिए कर रहे हो, आप शुक्राना किसी फल के लिए नहीं कर रहे हो कि वो फीलिंग्स के लिए कर रहे हो। तो ये चीज भी हमेशा याद रखनी जरूरी है प्लीज, कि डोंट डोंट गेट इनटू द ट्रैप ऑफ फीलिंग्स। मतलब वो ट्रैप होता है एक तरह का, तो आपने ये करते रहना है। जैसे कई बार ये ट्रैप आता है कि मैंने तो इस आदमी को इतना शुक्राना किया, इसके लिए इतना किया, इसके लिए इतना किया, ये तो मेरे साथ अब भी इतना बुरा है, या मैंने इसको इतना शुक्राना दिया, ये मेरे साथ ये बदतमीजी कर रहा है। अब नाउ इट्स अ ट्रैप कि आप अपने रास्ते से भटक जाओ और शुक्राने की दुनिया से बाहर चले जाओ, कि इसका कुछ फायदा तो है नहीं, असर तो हो नहीं रहा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, आपने शुक्राने करना है, करना है, करना है, करना है, करते हुए बस दिल से गहराई से करते चले जाना है। प्लीज कंटिन्यू। इस वजह से भी ये अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हो, ये जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक ना पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं, ये प्रयास रहना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की तरह पर बुलबुले की तरह उठ आएंगे। आप ये सवाल पूछकर ये जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं, वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन एक खबर मिनट मिली? होल्ड कीजिए। हर किसी को ये क्लियरली समझ आ रहा है जो रीडिंग हो रही है इस समय? रीडिंग को समझने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग द रीडिंग, बिकॉज हमारे पास काफी स्टेट्स के लोग हैं, महाराष्ट्र से भी बहुत जुड़े हुए हैं, गुजरात से भी जुड़े हुए हैं, आउट ऑफ इंडिया से भी जुड़े हुए हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द रीडिंग। प्लीज कंटिन्यू हनी जी। स्लो जब पढ़ने भी से आप बेटर रहेगा, हाँ जी, थोड़ा सा स्लो पढ़ने से, स्लो पढ़ना है, ओके, थोड़ा सा ओके स्लो रखिए। थोड़ा सा ओके जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी?
क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई मैम स्क्रीन हाँ, होल्ड कीजिए। प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस न करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीजें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, क्योंकि ये आपके वरदानों के आकार में नहीं है। आकार ये के बारे में नहीं है। आकार के बारे में नहीं है, ये तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर दिन एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। Hold on, hold. Okay, so this whole exercise is about जादू को याद रखें। जादू को याद रखने का क्या मतलब है? अगर आप डेली बेसिस पे देखें, अभी आप लॉकडाउन में हो, घर में हो, आप ऑफिस भी चले जाओगे जब खुलेगा या बाहर चले जाओगे, आपके साथ दिन में बहुत कुछ हो रहा होता है। कभी किसी का कॉल आता है, कभी किसी ने कुछ आपको ईमेल किया होता है, या कोई प्रोजेक्ट आपका अटका होता है पूरा हो जाता है, कोई स्टाफ का काम बड़े दिनों से अटका है वो पूरा हो जाता है, या कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है, बड़े दिनों से आप वेट कर रहे हो वो आती है। तो आपके लिए वो नॉर्मल रूटीन लाइफ होती है। हाँ, ये चीज यहाँ से आई, ये हुआ, ये हुआ, वो सारा कुछ रूटीन में चल रहा होता है। हो सकता है दिन में आपको हो सकता है कि दिन में उस हबड़ तबड़ में या उस कियोस्क के अंदर आपको उस चीज के अंदर मैजिक देखने का शायद टाइम नहीं मिला, या आपका उस समय जो स्टेटस था कि सारे तरफ एम्प्लॉइज थे, आप उस समय मैजिक फील करने के लिए इतने इंस्पायर्ड ही नहीं थे, या कुछ भी वजह हो सकती है। तो आपको ये कर सकते हो आप कि जैसे आपने सुबह से लेकर रात तक जो हुआ, या तो रात को सोते हुए याद कर सकते हो, या अगले सुबह, मतलब आप एक पूरा लिस्ट बना सकते हो, या लिस्ट अपने दिमाग में भी बना सकते हो। समटाइम्स पीपल मेक इट अ रिटन जर्नल एज वेल। आपके साथ जो हुआ, अब अगर सपोज रूटीन में सब कुछ होता जा रहा है, जैसे कि नीना जी ने शेयर किया था, उनके बेटे का फोन खराब हो गया। उन्होंने कहा कि अच्छा फोन खराब हो गया, अब तो दुकानें बंद है, सब कुछ लॉकडाउन में है, तो इसका शुक्राना कर, देखियो तेरा फोन ठीक हो जाएगा। ये कह के नीना जी रसोई में बिजी हो गई, वो बेटा अपने कामों में बिजी हो गया, उसने फिर शुक्राना वगैरह कर लिया, उसका फोन ठीक हो गया। बेटा भी बिजी है अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो गेम्स खेलने के साथ, उसने मम्मी को बताने में कुछ खास लॉजिक नहीं समझा। सिमिलरली नीना जी को भी नहीं पता, बाई चांस नहीं बेटा आ भी गया और बोल गया, मम्मी आपने बोला था ना, देखो मैंने फोन के शुक्राना किया, फोन ठीक हो गया। नीना जी कह रही अच्छा ठीक है बाद में बात करिए, वो कपड़े धोई जा रही है, जो झाड़ू पोछा किए जा रही है, चलो हाँ हो गया ना, फोन ठीक, चल जा तू अपने क्लास में चला जा, अब तेरा वो क्लास स्कूल की शुरू हो रही है, उसमें जा, हो गया ना ठीक। कैन यू फील यहाँ पे दे मिस्ड अ मैजिक। पर रूटीन में क्या कि शुक्र है चल फोन ठीक हो गया, जा तू अपना अपना क्लास में जा। What I'm trying to say right now is sometimes in the hustle bustle of our life, हर चीज ये होता है कि चल ठीक हो गया, जा काम पे लग। Instead of finding the magic in that moment or in that activity or in that person, so you can do that कि जादू को याद रखने के लिए अपना एक रूटीन बना सकते हैं हम कुछ। Let's see how to make that. Please continue. जब आप आज के बाद ये जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक दिन के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन
वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। So जिसके hold पास on, भी hold on. ओके, आपको ये चीज करने के लिए आप लिख भी सकते हैं स्टार्टिंग में, या आपको अगर याद रहे तो याद भी कर सकते हैं। कई बार जब इतना बिजी डे होता है पूरे दिन में, जैसे हमारा ये जो जादुई पत्थर वाला अभ्यास होता है रात को, जो हम मैजिकल रॉक अपने हाथ में पकड़कर ग्रेटिट्यूड करते हैं, दिस इज वन ऑफ द वेज। बट उसके अलावा भी ये वेज भी हैं। अब जैसे कि हमें याद होता है कई बार कि हमने किसी चीज के लिए शुक्राना नहीं किया। अब जैसे आई रिमेम्बर अभी लीचीज का सीजन आ रहा है एंड वी लव लीचीज इन आवर फैमिली। तो हम इतने दिनों से लीचियां ला रहे थे, तो लीचियां कभी अंदर से अजीब सी छोटी छोटी, कभी फीकी सी, कभी पानी वाली, मतलब बिल्कुल ही अजीब सी लीचियां आ रही थी। तो हम जब भी खाते थे हम कह रहे थे कि सीजन वाली आई नहीं अभी तक, तो जो भी था। एंड देन वन फाइन डे आई थॉट कि लीचियां मिल रही हैं लॉकडाउन में, यही बहुत बड़ी बात है यार। जरूरी थोड़ी ना उसी बेस्ट गार्डन से आ रही हो इस टाइम पर, हर चीज इतनी अस्त व्यस्त है इस टाइम पर। तो लास्ट टाइम व्हेन वी हैड मी एंड माय डॉटर, मैं उसको पील करके डॉटर को दे रही थी और साथ साथ में मन में सोच रही थी बहुत मीठी लीची है, बहुत अच्छी लीची है। And to our surprise, yesterday when the lychees came, मतलब fruit seller से लीची लेके आए, I mean that was the best lychee of my life. Like me and my husband were so grateful कि कितनी अच्छी खुशबू है, कितना बढ़िया स्वाद है, बिल्कुल ऐसा टेस्ट है कि मतलब फ्रेश टू फ्रेश लीची भी इसके सामने कुछ नहीं हो सकती है, मतलब जैसे पेड़ से तोड़ के खा रहे हो हम। So what's there? Sometimes we just लीची खाते हुए भूल गए ना ग्रेटिट्यूड करना। स्वाद अच्छा मिला तब भी भूल गए, मतलब स्वाद अपने मनवाफिक, मतलब बिल्कुल अपनी चॉइस का मिला तब भी भूल गए। सो व्हेन यू ट्राई टू गो बैक in a series, you will start recalling कि किस किस चीज के लिए आप शुक्राना कर सकते हैं। सो उस टाइम कर दिया, वेरी गुड, नहीं तो बाद में लिस्ट बना के कर लीजिए, इवन दैट्स वेरी गुड। प्लीज पढ़ें। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वे सब भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। जादू अभ्यास क्रमांक 28। जादू को याद रखें, अपनी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही हनी जी। यादें अच्छा, मुझे सुनाई नहीं दे रही है, सबको ओ। सुनाई नहीं दे रही? क्लियर मैम क्लियर नहीं है मैम। आवाज क्लियर नहीं है। हनी आपका ओके सिग्नल ओके क्लियर नहीं मैम, है। अभी क्लियर है। अच्छा एक ओके। मिनट, मैं दोबारा से पढ़ जादुई देती हूँ, रुकिए अभ्यास, रुकिए। आई रिपीट द लास्ट हाँ लाइन। जी, जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आपके लिए ही बनाया गया है। So everyone on the call, there are more than 70 people on the call. This is for you only. Instead of getting into any negative zone or any negative question or any unrequired question, unwanted question, अपने आप को क्वेश्चंस करना बंद कीजिए। आप अपने अपने विचारों में, अपने खुद के अनुभव में भी हर समय क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं। क्वेश्चंस आर नॉट बैड, दे आर ग्रेट, वंडरफुल क्वेश्चंस, बट उससे पहले उसी एरिया के अंदर उस एरिया को इतना कृतज्ञता से भर दीजिए, भर दीजिए। मतलब फाइनेंसेस का एरिया है, उसको इतना कृतज्ञ, मतलब हर चीज के लिए कि मतलब इस कॉल पे आया हूँ, मेरे मोबाइल पे डाटा है, मेरे मोबाइल में या वाईफाई चल रहा है, इस वाईफाई के लिए थैंक यू, इस डाटा के लिए थैंक यू, मेरे को हर हर हफ्ते या हर महीने इस मोबाइल पे रिचार्ज करने के लिए, वो पैसे देने के लिए थैंक यू। अगर आप इस डिग्री तक चले जाओगे कृतज्ञता के साथ, आपके क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे उस एरिया में। तो ज्यादा हमें उस तरफ जाना ही नहीं है जो नहीं है, जो है बस उसके लिए ढूंढ ढूंढ के, कुरेद कुरेद के थैंक यू करने के लिए अपने आप को ट्रेन करना, प्रैक्टिस देना। दिस इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट। प्लीज कंटिन्यू। जादुई अभ्यास क्रमांक 28। जादू को याद रखें, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी हर सूची दोबारा पढ़ें और अपनी हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं।
नंबर 2, कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से यह सवाल पूछें कि वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोल लें जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आज के बाद आप ये अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं उनके लिए आप कृतज्ञ हैं जिनके या लिए फिर आप ज्यादा जिनके जिनके लिए लिए आप कृतज्ञ जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू थैंक यू हनी जी वेलकम। फॉर रीडिंग इन इंग्लिश फॉर ऑल ऑफ अस। और थैंक यू हनी जी, आपकी मैम आवाज वैसे क्लियर, फॉर रीडिंग इन मैम हिंदी फॉर ऑल ऑफ अस। वन सेकेंड, एक मिनट, आई वांट द हिंदी शीट। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू। आई मैम जो वांट ये द, एक मिनट, आई वांट द हिंदी शीट बैक प्लीज। उसका मुझे एक्सरसाइज दोबारा पढ़ना है। हाँ बताएं, कुछ कह रहे हैं कोई? मैडम मैं ये कह रहा था, ब्रजेश बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैं कह रहा था जो ये मैडम ने पढ़ा है ना अभी, हनी मैडम ने, इन्होंने शब्द को शब्द पढ़ा है। एक्चुअली ये शब्द ही है, जैसे गुरु ग्रंथ साहब में शब्द होते हैं ना, हाँ जी। कृतज्ञता वो शब्द ही है एक्चुअली। तो Yeah, so this book is as powerful as Shabad or any Quran or any Gita. I have read most of those books in bits and pieces or parts, but it's equivalent to that. So thank you for bringing it up. Thank you. ओके सो इसका अभ्यास एक बार समझने वाली चीज है जो आज का हमारा जादुई अभ्यास है। सो नंबर 1, जब आप इसका फर्स्ट असाइनमेंट, फर्स्ट पॉइंट कर लेंगे, जो दिन की 10 नियामतें हमने लिखनी है, तो जब आप वो लिख लेंगे तो आपको ये फील करके बहुत ग्रेटिट्यूड होगा और अच्छा लगेगा कि आप अभी तक 280 नियामतें लिख चुके हैं। तो 280 नियामतें आप सोचिए, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि आपने 40 साल की उम्र में कभी आपने 40 बार भी खुद को नियामत दी है या ग्रेटिट्यूड किया है? कई बार हम नहीं करते हैं। उसी तरह से 280 नियामतें लिखना अपने आप में खुद को ग्रेटफुल होने के लिए काफी अच्छी चीज है, प्लीज कीजिएगा वो। कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। तो आप जब आज होमवर्क करेंगे तो कल के जितने भी हुए होंगे, तो आई कुड सी देयर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई मिस्ड यस्टरडे एंड आई कुड राइट इट, लाइक जैसे कि मेरा ब्रदर आया था घर पे, बिकॉज लॉकडाउन थोड़ा खुल सा गया, तो वो ही वाज जस्ट देयर टू मीट मी एंड मीट अस एंड फैमिली के साथ। he made a fantastic garlic bread. He is a very good cook. तो मतलब इतना, मतलब मैंने उस समय खाया और मैंने कहा वाओ दिस इज नाइस, वेरी वंडरफुल, और उसके बाद मैं अपने कामों में लग गई। एंड टुडे I'm just reading this और मैं पिछले दिन को याद करते हुए, माय गॉड, उसकी गार्लिक ब्रेड डोमिनोज से भी कई गुना ज्यादा फैंटास्टिक थी। मतलब ही इज टू गुड एट इट। एंड मैंने उतना तो शुक्राना नहीं किया था, मतलब जितना कि मेरे को लग रहा है कि वो डिजर्व करती है, वो गार्लिक ब्रेड भी और वो उसको बनाने वाला भी। सो जस्ट कीप राइटिंग एंड यू विल फाइंड कि यहाँ पे बहुत सी चीजें ऐसी है जहां पर अभी शुक्राना करने के और भी चांसेस हैं। सो कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से ये सवाल पूछें, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोलना पड़ेगा आपको, अपने आप नहीं निकलेंगी ऊपर से, आपको थोड़ा उसके अंदर घुस के लेफ्ट राइट से टटोलिए तो बहुत चीजें बाहर आ जाएंगी। जब तक कि आप संतुष्ट ना हो जाए कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। तो अभी मैं बोल रही हूँ तो मुझे ये याद आया कि हाँ, गार्लिक ब्रेड बनाने के बाद मेरा ब्रदर, हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे थे एंड वहीं पे मेरा बेटा भी बैठा था, मेरी बेटी भी, मैं, मेरे हस्बैंड सब बैठे थे। तो गार्लिक ब्रेड बहुत सारी बनाई, तो हम अपने मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे देवर देवरानी, उनके बच्चे, जेठ जेठानी, उनके बच्चे, सारे एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, तो उनको भी देख के आए। उन सब ने भी बहुत प्रशंसा करी, बहुत बढ़िया बनाया। तो मैंने मतलब उन लोगों की प्रशंसा को भी वहां तक नहीं पहुंचाया जिसके लिए मैं कह सकती थी कि मेरे फादर इन लॉ को और मेरी मदर इन लॉ को, इन सबको इतनी टेस्टी गार्लिक ब्रेड खाने के लिए भी उसका धन्यवाद। तो मैं वो भी कह सकती हूँ। मतलब सोचना पड़ेगा ना, टटोलना पड़ेगा।
उसके बाद जो कन्वर्सेशन हुई, इस कन्वर्सेशन के अंदर ही वाज टेलिंग अबाउट क्रिएटिंग विजन टू माय सन. माय सन इज अ लिटिल मस्त बंदा राइट नाउ, बिकॉज छुट्टियों में ज्यादा ही मस्ती चल रही है उसकी. तो उसको वो समझा रहा था कि अगर इस उम्र में तुमने, अभी कॉलेज में हो ना, इस उम्र में अपना विजन फिक्स कर लिया और उसके पीछे लग गए तो लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी. एंड द वे ही वाज कन्वर्सिंग विद हिम वाज वेरी फ्रेंडली and very optimistic kind of approach and very easy approach. तो उसके बाद मेरा बेटा सच में उस बारे में सोच रहा था. So what I mean is कि I really can be thankful about the way he was conversing with my children, and the way my children were so much happy that he has come, and everything was so beautiful. So वो situation चली गई है और मैं भूल भी गई उस बारे में. ठीक है, वो आया था, गाली ब्रेड खाई थी, बैठ के बातें करी थी, बात खत्म. Now if I start thinking about it, my God, it has a lot of gold, and digging that gold and bringing it out, and उसके लिए शुक्राना करना, चाहे खुद को, चाहे उस हालात को, चाहे उस इंसान को आप मन ही मन भी शुक्राना कर सकते हो. और आज की दुनिया में फोन उठाकर उसको बोलने में कुछ ज्यादा नहीं लगेगा, आप उसको बोल के भी शुक्राना कर सकते हो, चाहे बाद में ही सही. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस असाइनमेंट. तो जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें. आज के बाद आप ये अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं, या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं. आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि अब आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं. आई होप इट्स मेकिंग क्लैरिटी टू एवरीवन. ओके, थैंक यू. प्लीज हु इज रीडिंग इन इंग्लिश? Can we have the English? Okay, I'll read. Rajesh what- Madan. Okay, Rajesh, thank you. English में host, please bring the English book. Host, Annie, आप host ना तो please English के book ले आएं screen पे. And everyone on the call, thank you for giving the opportunity to restart the book. तो कल आपके ग्रुप पे मैसेज आ गया है. रीस्टार्ट मतलब अभी विल बी, अभी डेट हम अनाउंस नहीं कर रहे हैं बिकॉज कल से हमारी मैनिफेस्टेशन की क्लास स्टार्ट है. सो राजन जी और हम मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं कल से. उसका मैसेज भी आपको ग्रुप पे आज मिल जाएगा. इट विल बी, द टाइमिंग्स आर 2:30 to 5:30. तो उसके अंदर हम सारी मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड डिफरेंट रूल्स, लॉज ऑफ द यूनिवर्स के बारे में हम डिटेल के अंदर वी विल बी क्रिएटिंग दैट वर्ल्ड फॉर यू. तो वो इनवाइट आपको मिल रहा है. और उसके बाद हम इस जर्नी को, जो कि मैजिक बुक जर्नी है, इसको कंटिन्यू करेंगे. उसकी डेट आपको बहुत जल्द ग्रुप पे मिल जाएगी. बट दैट्स अ गुड न्यूज कि वी आर स्टार्टिंग 3 बैचेस मॉर्निंग में 5 to 6. Now why 5 to 6? I was really trying to have it 4 to 5 rather, because that's the ब्रह्म मुहूर्त. ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा टाइम होता है जो कि आपके पूरे के पूरे बॉडी सिस्टम या आपके ओवरऑल सिस्टम्स के साथ कॉस्मिक पावर्स का जो यूनियन होता है, दैट्स द बेस्ट टाइम फॉर दैट. अब ये क्या साइंस है, इफ यू वांट प्लीज गूगल इट. और अगर आपको चाहिए तो राजन जी ने एक बहुत अच्छी वीडियो इसके लिए डिस्कवर की हुई थी. आई विल सेंड इट ऑन द ग्रुप. एंड वी रियली बिलीव दैट कि ब्रह्म मुहूर्त क्यों होता है, या आनंद, इसको एक बेसिकली अमृत बेला भी बोला जाता है. अलग अलग रिलीजन्स में, या जैसे क्रिश्चियंस में प्रेयर्स का टाइम बोला जाता है. तो अगर आप पंजाबी हैं या आप सिख हैं तो यू नो व्हाट इज अमृत वेला. तो ये सब चीजें जो आप देख रहे हैं, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो प्रेयर हो, चाहे वो कुछ भी करने के लिए बेस्ट कॉस्मिक, बिकॉज इस समय अगर आप साइंटिफिकली सोचेंगे, इस समय हमारे पूरे प्लैनेट के अराउंड एक मैग्नेटिक वेवलेंथ बनती है जो कि हमारे, आई डोंट वांट टू गेट इनटू, चलो छोड़ो उस बात को. बहुत सारी चीजें हैं. तो अगर आपको लगता है इट सूट्स यू, प्लीज ज्वाइन अस इन 5 to 6 बिकॉज दैट्स द मोस्ट वंडरफुल टाइम टू डू दिस बुक. एंड उसके बाद 8 से 9 का टाइम है, और उसके बाद 12 से 1 का टाइम है. अभी वो वाला टाइम 12 से 1 वाला थोड़ा सा मे बी बिकॉज पीपल आर डिमांडिंग, मे बी अ लिटिल ऑल्टरेबल. सो ऑल द 3 बुक रीडिंग सेशंस विल बी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी बेनिफिटिंग टू एवरीवन. तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, और जितने ज्यादा लोग होंगे उतना पढ़ाने में या पढ़ने में और इंस्पिरेशन मिलती है. वरना लगता है कि अरे सुबह उठ गए हम लोग 5 से 6 में, और लोग तो इतने सारे बेनिफिट नहीं ले रहे हैं. तो प्लीज मेक श्योर यू इनवाइट ऑल ऑफ योर पीपल. और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे मतलब जिनको बुक पढ़नी आती है, बस इतने बच्चे होने चाहिए. आपको ये समझना चाहिए कि जितने भी आपके घर में यंग
मैंने उनको यंग चिल्ड्रन नहीं बोलती या यंग बच्चे नहीं बोलती, वो एक तरह के पूरे पीपल हैं, इंसान है, और उनके पास भी उतनी ही कंसर्न, उतनी ही समस्याएं, उतने ही टॉपिक्स, प्रॉब्लम्स होती हैं जितने कि आपके पास होते हैं। तो और वो आपसे कभी शेयर नहीं करेंगे क्योंकि आपकी वेवलेंथ और उनकी वेवलेंथ सेम नहीं होती है। तो मतलब देयर इज अ होल साइंस बिहाइंड इट। तो वी हैव रिक्वेस्टेड एंड रियली, एंड शी इज अ वंडरफुल लीडर। सो 12 to 1 विल बी अ टीनेजर, अ यंग लीडर, जो कि उस दुनिया के साथ बुक रीडिंग में ज्यादा उन लोगों को इन्वॉल्व कर सकती हैं। तो मेक श्योर आपके बच्चे या पड़ोसियों के बच्चे, जितने भी लोग हैं जो 20 साल से छोटे हों, उनके लिए तो वो मस्ट ज्वाइन है 12 to 1। तो अगर वो ही अभी इस मोमेंट पे ट्रांसफॉर्म हो गए, इस दुनिया में एंटर कर गए, तो सोचिए उनका आगे फ्यूचर कैसा आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट इन सो मेनी लाइव्स। थैंक यू। प्लीज स्टार्ट राजेश जी। Okay, day 28. Remember the magic. That's the thing with magic. You've got to know it's still here, all around us, or it just stays invisible for you. Charles Dalent, writer and Celtic folk musician. Every day is unique. There is no day like any other day. The good things that happen each day are forever different and forever changing. And so, when you remember the magic by counting yesterday's blessings, no matter how many times you do it, it will be different every time. It's just one of the reasons why Remember the Magic is the most powerful ongoing practice to maintain the magic of gratitude in your life. No matter what your desires are now or what desires you will have in the future, this magical practice will remain the most powerful practice for your entire life. The easiest way to remember the blessings of yesterday is to start by remembering the beginning of the day when you woke up and go back over the day in your mind, recollecting the major events of the morning, afternoon, and evening until you reach the time when you went to bed. When you recall yesterday's blessings, it should be effortless. You are just scanning the surface of yesterday. And as you scan, the blessings will bubble to the surface of your mind. You can start this magical practice by asking the question, what are the good things that happened yesterday? 1 second. So when, because I always go one chapter चलिए ahead. So when I was doing this assignment, हर चीज के अंदर, चाहे खाते हुए, चाहे सोते हुए, चाहे नहाते हुए, चाहे ब्रश करते हुए, आप कॉल पे हैं, हर मोमेंट पे there is a magic. You need to really discover it. Like yesterday when I was in shower, so जो पानी का टेम्परेचर था जो शॉवर से आ रहा था, it was very pleasant. वेरी नाइस टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर भी मैटर करता है। कई बार ठंडा पानी हो जाए तो भी इतना प्लेजेंट नहीं लगता, बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो भी प्लेजेंट नहीं लगता। तो देयर इज अ सर्टेन डिग्री ऑफ टेम्परेचर व्हिच रियली मेक्स यू फील सूदिंग एंड काम। सो when that temperature was there, I was really thankful to the geyser, to the water tanks, everything जो मतलब proper जो उस temperature को बनाने के लिए helpful थे। And when I was in gratitude, suddenly I remember one incident. It was a little old incident. My brother was in Dubai at that time, my another brother, and he called us for a holiday. And हम सब लोग बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों में थे और हम लोग उसके घर गए दुबई में। He was staying at Jumeirah, तो उसका अपार्टमेंट था वहां पर और जुमेरा में। एंड वी वर रियली, मतलब कितना खूबसूरत अपार्टमेंट, कितना उसके आसपास समुंदर और इतना अच्छा सब कुछ, एंड वी वर रियली हैप्पी। और अगले दिन जब हम सुबह नहाने के लिए सब लोग नहाने गए, कि उसके बाद हमारा दिन था, वी वर गोइंग आउट फॉर शॉपिंग एंड ऑल, नहाने गए हम सब लोग, हाय हाय करना शुरू हो गए, हाय हाय लिटरली, कि उसके हर नलके में से इतना गर्म पानी आ रहा, उबलता हुआ पानी आ रहा, क्योंकि अंदर तो उसका अपार्टमेंट एसी है पर बाहर तो गर्मी, और जो टैंक्स पड़े हुए हैं वो तो ओपन में पड़े होंगे ना, जो अपार्टमेंट्स के ऊपर टैंक्स होंगे। इट वॉज बॉइलिंग लाइक एनीथिंग काइंड ऑफ वाटर। तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए, ना नहा पाए ना ब्रश कर पाए। जो हम लोग पानी खरीद के लाए हुए थे, क्योंकि पीने वाला पानी खरीद के मिलता था, उसी के साथ हम लोगों ने ब्रश किया, उसी के साथ हम लोग, इतना महंगा खरीदा हुआ पानी था, उसी के साथ हम लोगों ने हल्का फुल्का मुंह हाथ धोया। एंड वी वर रियली अपसेट कि सब कुछ इतना खूबसूरत है एंड water temperature is not what we require. So
अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, भारत में कहीं रह रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कि अगर आपके नलके में से वो टेम्परेचर आ रहा है पानी का जो कि आपको सूदिंग है, आपको प्लेजेंट है, हाउ फॉर्चुनेट यू आर. खत्म हो गए क्या? So that's something just which can be a great reason for being grateful. Thank you. Please start reading. Okay. So whenever you ask a question, your mind will immediately look for the answer. Did you receive any great news? Did you magically receive or accomplish one of your desires? Did you magically receive unexpected money? Did you feel especially happy? Did you hear from a friend who you haven't heard from in a long time? Did something go magnificently well for you? Did you receive a great phone call or email? Did you receive a compliment? Or did someone express his or her appreciation for you? Did someone help you to solve a problem? Did you help somebody? Did you finish a project or start something new you are excited about? Did you eat your favorite food or watch a great movie? Did you receive a gift, resolve a situation, have a stimulating meeting, quality time with someone, a great conversation, or make plans for something you really want to do? Remember the magic and list yesterday's blessings on a computer or write them out in a journal. Scan over the surface of yesterday until you feel satisfied that you have recalled the blessings of the day. They can be small things or big things because it's not about the size of the blessings, it's about how many blessings you find and how much gratitude you feel for each one. As you remember and notate each one, simply be grateful and say the magic words for it. Thank you. When you want to do this magical practice after today, you can mix it up so that some days you write about the blessings and other days you remember the blessings and say them out loud or in your mind. You can make a quick list of the blessings, or you can make a more detailed list saying why you are grateful for each one. There is no set number of blessings to find from yesterday because every day is different. But I can assure you that every single day of your life is full of blessings. And when you have opened your eyes to see the truth of this, you will have opened your heart to the magic of life, and your life will be abundant and magnificent. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Remember the magic. It was created for you. Magic practice number 28. Remember the magic. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. You have written 280 blessings over the course of this book. Number 2, remember the magic by counting the blessings of yesterday and writing them down. Ask yourself the question, what are the good things that happened yesterday? Scan the surface of yesterday until you feel satisfied that you have remembered and written down all the blessings of the day. Number 3, as you remember each one, simply say the magic words, thank you, for it in your mind. Number 4, after today, you can do this practice as a written list or out loud in your mind. You can make a quick list of the things you're grateful for about yesterday, or make a shorter and more detailed list and say why you are grateful for them. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Thank you. Thank you, Rajeshri, for reading in English for Thank you. all of us. Thank And you. there are so many other participants who are giving you gratitude for reading so beautifully.
So all the love and thanks from all the Thank you. participants. Thank you, You everybody. can see in the chat box. Yeah. Okay. So awesome. So It's you can wonderful be, to see all this. you can be grateful about your readings as well. Oh yeah, certainly. Thank you, everybody. Thank you everyone. Okay, so yes, if you have any question about today's practice, काफी लोगों को क्वेश्चन था कि कैसे हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे या इसको कैसे अपने लाइफ में हमारे को बाद में पढ़ना है अगर आप किसी और सेशन में नहीं आ रहे हैं। तो कल का सेशन इज ऑल अबाउट दैट कि इसके अंदर बताया जाएगा। इट्स नॉट, आज हमारा 28 है बट क्लोजिंग सेशन कल हमारा रहेगा where we will be talking about how to get it absorbed and repeated in your life. Okay, so if there is any other question, please ask. मैडम इसमें One second. I want a new person right today. Please, really want people who are not speaking. Please speak up. Because I really want to understand. Because एक दिन उन्होंने क्वेश्चन पूछा, सुनीता जी ने शेयरिंग करी। सुनीता जी फ्रॉम महाराष्ट्र, अगर आप हैं प्लीज अपनी वीडियो जरूर भेजिएगा, क्योंकि आपको पता भी नहीं है जो 3 सेशंस हमने स्टार्ट करे हैं इसको इनिशिएट करने के लिए आपकी शेयरिंग, जो आपने शेयरिंग करी थी, उसका कितना पीछे योगदान रहा है। तो आई रियली वांट टू, बिकॉज कई लोग हमारे ग्रुप में हैं जो कि बहुत ज्यादा काबिल हैं और कर सकते हैं, उनको अपने लाइफ में बहुत फायदे भी हो रहे हैं, फिर भी वो लोग इनिशिएट नहीं कर रहे हैं इस बुक की रीडिंग को। रीडिंग मतलब वो लीड नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि नहीं यार क्या फायदा है, बेकार की बातें हैं एंड ऑल, टाइम वेस्ट है, मेरे पास ऑफिस जाने का टाइम नहीं है, अभी लॉकडाउन खुलने वाला है, फिर मैं कैसे कर पाऊंगी बाद में। यू नो, दे हैव अ लॉट ऑफ बैरियर्स। बट आप लोगों की वीडियोस जब मैं इन लोगों को दिखाऊंगी, इन लोगों के पास अपने इतने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, हजारों लोगों को ये लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एंड दे नो दिस बुक इज मैजिकल बट दे डोंट हैव टाइम टू कंट्रीब्यूट। सो आपकी छोटी से छोटा एक्सपीरियंस भी अगर आप वीडियो में देंगे तो मैं कम से कम 10 नए लीडर्स क्रिएट कर सकती हूँ जो मुझसे भी बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर इसलिए मैं बोलूंगी क्योंकि वो भी इस दुनिया के मैजिक को जानते हैं, फील करते हैं और उसके अंदर जीते हैं, पर वो देने वाली स्टेज के ऊपर इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि उनको लगता फायदा नहीं है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। प्लीज शेयर योर शेयरिंग्स ऑन द ग्रुप इन अ स्मॉल वीडियो, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू फॉर दैट, so that we can start more and more groups. Yes, please share. हाँ जी। Good morning, ma'am. This is Good morning. Dipanjali. एक सेकंड दीपांजलि, आपसे पहले किसी मैन की आवाज थी। Okay, please. One second. Someone was saying something. किसी मेल की आवाज थी। मैडम मैंने बोला था। हाँ जी बोले। मेरा इसमें सवाल था कि जो 280 ब्लेसिंग्स हो गए हैं जो लिखे हैं हमने, तो उसमें छांट के लिखने हैं क्या थोड़े, जितने भी की अलग से सेग्रीगेट करके? कुछ भी नहीं करना आपको कृष्णा जी, वो सिर्फ आपको एक्नॉलेज कर रहा है। आपने बस आज के 10 लिखने हैं, तो उसने जब आपने 10 लिख लिए तो उसने आपको एक्नॉलेज किया कि क्या आपको पता है यू हैव रिटन 280 ब्लेसिंग्स ओवर द कोर्स ऑफ दिस बुक। तो वो आपको बता रहा है, आपने कुछ नहीं करना, बस स्टैंड करना। ठीक है। हाँ जी दीपांजलि। यस मैम। मैम ये बुक आप इसको लास्ट पेजेस पे ना इसके बुक में एक पावर बुक के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है, तो वुड यू रेकमेंड कि वो बुक पढ़नी चाहिए? हाँ, पावर बुक, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लव। सी, जैसे अगर आप गुड फीलिंग्स का, कल मैंने चार्ट दिया आपको ना ग्रुप पे, तो अगर आप चार्ट भी देखेंगे ना तो सबसे टॉप जो फीलिंग होती है वो लव होती है, जो आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स या गुड फीलिंग्स को जनरेट करती है। उसके बाद सेकंड बेस्ट जो होती है, वो सेकंड मोस्ट इफेक्टिव जो होती है, वो ग्रेटिट्यूड होती है। तो अभी हम जैसे इस बुक के साथ काम कर रहे हैं तो ग्रेटिट्यूड है, इसके बाद लव है। बट इन माई एक्सपीरियंस, बिकॉज मैंने दोनों पढ़ी हुई हैं, लव इज नॉट अबाउट प्रैक्टिसिंग। उसमें कुछ प्रैक्टिस नहीं देगा, वो बुक की तरह है, बुक आप पढ़ते चले जाओ। अगर आपको अपने लिए पढ़ना है, हाँ जरूर पढ़िए, इट्स वेरी ब्यूटीफुल बुक, बहुत इफेक्टिव है, अपने लिए पढ़ सकते हैं, बट आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे इस बुक की तरह। तो मेरा लास्ट एक्सपीरियंस ये रहा है कि इस बुक की सफलता का श्रेय सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें 28 चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर हमारी जिंदगी के अलग अलग एरियाज को बहुत इफेक्टिवली टच करता है, और फिर हमारे को उस एरिया के अंदर कुछ होमवर्क देता है करने को। अगर हम होमवर्क नहीं करेंगे तो ये बुक भी एक भोग विलास, बुद्धि विलास वही है। बुद्धि विलास करने के लिए तो वैसे ही हम बहुत इंटेलिजेंट है भैया, आपको बुक्स पढ़ने की क्या जरूरत है। आप यूट्यूब खोलिए, आप कहीं पे भी किसी भी जगह पे चले जाइए, बुद्धि बुद्धि बिखरी है। मतलब आप माहेश्वरी जी के देखिए वीडियोस, बिंद्रा के देखिए, आप सदगुरु जी के देखिए, क्या मिल रहा है? बुद्धि तो मिल रही है। तो इसके लिए मेहनत क्यों कर रहे हो पढ़ने की? वीडियो खोल लो ना कोई। बट द थिंग इज, उस बुद्धि का आप तब तक बेस्ट यूज नहीं कर सकते जब तक आपको एक असाइनमेंट या प्रैक्टिस फॉर्म नहीं मिलता। तो
तो अभी जो हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छा आपका क्वेश्चन का मैं आंसर दे देती हूँ. यस, पावर इज अ लवली बुक, इट्स योर चॉइस, यू कैन गो अहेड. जैसे सीक्रेट एक बहुत अच्छी बुक भी और अच्छी मूवी भी है, आई ऑलवेज रिकमेंड इट, बट ये छोड़िएगा नहीं. छोड़िएगा नहीं का क्या मतलब है? अभी आपने 1 महीना किया है, इस बुक को किया है आपने कंप्लीटली. आप एक एज्यूम कीजिए आप एक जिम में जा रहे हो और आपका टारगेट है कि मेरे को 10 किलो वजन रिड्यूस करना है और अपनी फिगर को ऐसा ऐसा बनाना है. अब आप 1 महीने गए और आपको जिम में जाने से थोड़ा बहुत असर दिखना शुरू हो गया है कि हाँ अब मेरी थोड़ी कमर पतली हो गई है, थोड़े मेरी थाइस पतले हो गए हैं वगैरह वगैरह, मेरा कहीं कहीं पे बॉडी शेपिंग हो रही है. अब अगर अगले महीने आपने जिम जाना छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? वापस शेप उसी शेप में आ जो जाएंगे मेहनत जहाँ किया वो भी स्टार्ट धीरे किया। धीरे डिसअपियर हो जाएगा. उसी तरह से अभी अभी जिस स्टेज पे हम लोग हैं, और मैं तो आज भी सोचती हूँ अगर 10 साल भी मैं जिम गई ना, 10 साल मैंने बॉडी को फिट रखा, उसके बाद भी मैं जिम जाना बंद हो गई तो मेरी बॉडी फिर से वैसी लेथार्जिक हो जाएगी, फिर से वैसी बिहेव करने लग जाएगी. तो अगर मेरे को एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए तो मेरे को जिम जाना जरूरी है, जैसे या मेरे को फिट रहने के लिए, यंग दिखने के लिए जिम जाना जरूरी है, उसी तरह से मुझे अपनी किस्मत को बनाए रखने के लिए, किस्मत को और शार्प बनाने के लिए, और ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए वो चीजें जो मुझे लाइफ में चाहिए, इस बुक की रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है. सो ऑल द बेस्ट. Okay. Thank you So, so one much. second. It's 8:03. Those who wish to log off, they can log off. Thank you for being on the call. Please do your assignment. Those who have questions, please stay. Yes. Yes, ma'am. Sandhya this side. Good morning, ma'am. Good morning, Sandhya. मैम एक क्वेश्चन आज के असाइनमेंट से रिलेटेड नहीं है बट वैसे ही है. मैम जैसे अभी इस लॉकडाउन के अंदर हम लोगों ने मतलब कुकिंग में या किसी भी चीज में हमने बहुत मेहनत करी. मैंने आजकल उसमें खाना बहुत ज्यादा बनाया, बट आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं कुछ चीज बनाती हूँ, आई एम वेरी मच हैप्पी, ठीक है. उसके बाद जब कोई और वो 4-5 दिन के बाद वही चीज बनाता है, ये वाला यार बड़ी टेस्टी बनी है, बड़ी टेस्टी बनी, और वो आके ये चीज भूल जाते हैं यार 4-5 दिन पहले मैंने भी बनाई थी. उस चीज का ना एकदम नाम खत्म हो जाता है और मुझे उससे ना बहुत ज्यादा हर्ट फील होता है कि हाँ यार मैंने भी तो बनाया था, उस टाइम ऐसा कुछ नहीं हुआ. तो वो चीज कैसे रिमूव कर सकते हैं या उस चीज के ऊपर कैसे वर्क कर सकते हैं? बताओ कैसे करना है. पता नहीं मैम, मेरे को खुद ही नहीं समझ में आ रहा. मतलब मेरे साथ ये चीज हो रही है 2-3 बारी से, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा. You want answer from me? Yes. Sometimes ना, मतलब I don't really, मतलब why I am saying that because अब एक डॉक्टर है, इलाज कर रहा है एक चीज का, बार बार इलाज कर रहा है, फिर वापस आकर पेशेंट बोल रहा है मेरा गला खराब है, मेरा गला खराब है, गला खराब है, और ना वो दवाई खा रहा है प्रॉपरली, और उसके बाद खट्टा भी पूरा खा रहा है, ठंडा भी पूरा खा रहा है, और डॉक्टर को पता है. तो यहाँ पे वो वाली बात है. तो आप अगर मेरे को सुपरफिशियल लेवल पे बोलो कि इस चीज का इलाज कर दो, तो व्हाई आई एम सेइंग सो कि आपने कल का असाइनमेंट जब किया, मिरर प्रैक्टिस किया, तो क्या आपका क्या अनुभव रहा, पहले आप ये बताओ. मैम मेरे को सच्ची बताऊं तो कुछ अभी समझ में नहीं आया. मुझे आज फिर दोबारा करना है उस चीज को. मैं आपको सच्ची बताऊं तो आप मिरर के सामने 3 बार गए ही नहीं बात करने के लिए. नहीं मैम, वैसे ही मैं बहुत ज्यादा जाती हूँ, 3 बारी की जरूरत नहीं है. दिन में 4 से 5 बारी तो मैं वैसे ही अपने आप से बात कर लेती हूँ. Okay, so I repeat yesterday's assignment. You need to be in the mirror, looking at your eyes, eye to eye, and then you need to say thank you. अगर आप मिरर में अपने आप को 3 बार थैंक यू बोलकर, वो 3 वजहों के लिए थैंक यू बोला होता ना आपने, कि तूने जो वो खाना बनाया था ना यार, वो तो मजेदार ही था, बहुत ही बढ़िया तूने मेहनत करी, जो तूने आज तक तेरे को शौक नहीं था वो शौक डेवलप किया और तूने खाना बनाया यार, उस एफर्ट के लिए तेरे को थैंक यू. अगर आपने ये एक्सरसाइज 1 बार 2 बार 3 बार की होती ना शैलजा, तो ये जो वर्ल्ड ऑफ एनवे है या वर्ल्ड ऑफ कंपैरिजन है, ये अपने आप सबड्यू हो जाता. अगर आप मुझसे वैसा आंसर चाह रहे हो जो कि एक दिरानी जेठानी किटी फ्रेंड्स या औरतें आपस में करती हैं, जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि ये हुआ, दूसरे का ये हुआ, तो मैं आपको बोलूंगी यार ये तो दुनिया ऐसी ही है, कमी नहीं है, उसके वैसे तारीफें करते रहेंगे, तेरी जेठानी है ना इसलिए उसी की तारीफें ज्यादा ही करेंगे, तू रहने दे यार, ये लोग तो ऐसे ही हैं. इफ यू एक्सपेक्ट दैट आंसर फ्रॉम मी, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू. ओके, तो आई नो मेरा स्टूडेंट इस समय कहाँ खड़ा है. अगर उसने कल का असाइनमेंट किया होता ना, तो लोगों को अपने मरे हुए ससुर के भी आशीर्वाद मिल गए हैं.
मरी हुई सास के साथ उन्होंने क्या चीज नहीं करी जो उनको करनी चाहिए थी, उनके लिए वो भी खुल गए. So what I mean is you need to be in love with yourself first, Sandhya. Yes, yes. You need to be in love with yourself. The moment you will be in love with yourself, other people will start loving you like anything. अब ये रूल अगर आपको समझ आ जाए तो इस बढ़िया है, इस जन्म में समझ आ जाए और बढ़िया है, नहीं तो अगले जन्म तो पड़े ही हैं, कैसे कैसे आएंगे सबके सब. मैम ठीक है, इतने में इसी जन्म में समझ लो भैया 28 दिन निकल गए. लव योरसेल्फ, एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर. दूसरे लोग आपके खाने की तब तारीफें करेंगे जब पहले आप तारीफ करोगे उस खाने की. खुद तारीफ करने के लिए लोगों के मुंह पे नहीं करना, आपको शीशे में जाके उस इंसान से बात करनी है जिसने वो खाना बनाया था. जब उसको ये चीज अंदर से फील हो जाए कि उसने कुछ मेहनत करी है, खाना बनाया है, तो उसकी जिंदगी में अपने आप लव आना शुरू हो जाएगा. आपको ये चीज अभी अभी बहुत लेवल है इसका. जो दुनिया है ना वो कुछ वो ओके. सो I'll say that if you can get that. ये अजीब सा फ्रेज है, मुझे पता नहीं कौन कौन समझ पाएगा. You creating me, creating you, creating me. आप ये जिस दिन समझ जाओगे ना, इस दुनिया में कोई भी वो नहीं है, तू नहीं है, अलग नहीं है, मैं ही उसके अंदर हूं, वो ही मेरे अंदर है. So this is the way to live your life. The day you will feel it, you will start thinking about it. आपकी जेठानी के अंदर आपको सिर्फ वो दिख रहा है जो आपके अंदर है. अब वो आपके अंदर ही अगर आपने नहीं पकड़ा तो आप पूरी जिंदगी बाहर बाहर उसका इलाज करते रह जाओगे ना. सिंपल एग्जांपल, रचना जी. अभी अभी तो आज पकड़ा हमने, और रचना जी पे मैंने इसलिए काम किया क्योंकि रचना जी के ऊपर काम करना मेरी जरूरत है. मैं इस बुक को हर घर तक पहुंचाना चाहती हूँ, हर बच्चे की लाइफ तक पहुंचाना चाहती हूँ, इसलिए मेरी जरूरत है वो. आपको मैं क्लियरली दे देती हूँ, आपके अंदर जो डेफिशिएंसी है मुझे साफ दिख रही है क्या है, पर मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि यू नीड. नहीं, बिल्कुल नहीं. अरे कोई डॉक्टर भी देखता है मरीज दवाई से ठीक होना है या इसकी कितनी एफिशिएंसी है अभी फिलहाल. तो अगर आप शीशे में जाकर काम, व्हेन यू हर्ड रचना जी, कुड यू हियर इट? शी हैड टीयर्स इन हर वॉइस. शी इज रेडी. She is ready, palpably ready right now. मुझे सिर्फ उनको वो हटाना है उनके अंदर से जो वो नहीं है. And she is ready for this world. Okay? So when you will have tears in your eyes looking in the mirror for yourself and see what you are not, you will be ready. Okay? So please work with yourself. Spend some time with yourself. सबसे पहले खुद का ग्रेटिट्यूड, खुद का शुक्राना करना शुरू करना है. शीशे में आप इतना ही शुरू करें, यू विल रीच अनदर लेवल. ठीक है? अभी अपने अंदर कमियां देखना, अपने अंदर की वो चीजें देखना जो आप नहीं हो, उसमें आप बहुत टाइम लगा रहे हो, बहुत दिमाग लगा रहे हो. तो आई रिक्वेस्ट यू टू बी इन फ्रंट ऑफ मिरर टुडे एंड अपने आप को 3, 4, 6 जितनी बात ऐसी लगे कि जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हो, प्लीज स्टार्ट डूइंग इट. ठीक है? बाकी लोगों से एक्सपेक्ट मत करो तब तक कि वो आपको शुक्रगुजार होंगे. All the Yeah, best. but Ashwin, like I had a very different feeling. Was it okay? Like I told you, I told you, kind of like there was a lot of love that came out. So तभी मैं बोल रही हूँ कि everyone will have different feelings, and you need to really love yourself. I literally kissed myself a number of times, like, you know. Mother, you need not to kiss in mirror. Yeah, that's what I did. Yeah. You can actually kiss yourself. Why not? So that was the okay feeling, no? Nothing. And that's the most beautiful feeling. The day you will fill yourself with love, with immense love, you are ready for the world. You know, पहले मेरे को खुद को भोजन खिलाना है, मैं खुद भूखी मर रही हूँ, मैं दुनिया को क्या खिलाऊंगी? True. तो आपको पहले खुद को इतना खिला खिला के रजा देना है अंदर तक. इतना प्यार करो खुद को, हर चीज के लिए शुक्राना, हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड. तो खुद को जब आप इतना ग्रेटिट्यूड कर दो कि देयर विल कम अ टाइम व्हेन यू विल फील यू आर रेडी फॉर द वर्ल्ड, यू आर रेडी फॉर द अदर पर्सन टू pour love to them, to give gratitude to them. To my surprise, so much of gratitude I did for myself. मेरा रोना नहीं निकला कल. अजीब सा ही हो Okay, गया. so none of it is required. जैसे इन्होंने बोला, कोई दिन सेम नहीं होगा, कोई एक्सपीरियंस सेम नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता. तो इसीलिए एक दूसरे के साथ हमारे को, क्योंकि आपकी दुनिया अलग है, आपके हालात अलग है, आपके कर्मास अलग है, एवरीथिंग इज डिफरेंट.
मेरे अलग हैं, संध्या के अलग हैं. We cannot say कि why is she not responding in this way, because she has a whole life of difference. No, I was talking about myself. It was normal, no, nothing abnormal. It's all of you, जो भी आपका experience हुआ है, it's perfect. क्योंकि शीशा झूठ नहीं बोलता. उस शीशे ने आपको बोला मुझे फ्लाइंग किस करो, आपके मन से फ्लाइंग किस निकली. उस शीशे ने बोला मेरी आंखों में देखो, मेरी तारीफें करो, मेरे रिंकल को प्यार करो, आपने किया. This is what the mirror is asking for, and you are giving it to the mirror. Thank you. Okay, and give it more and more and more. Thank you. All the best. Thank you. Okay, so thank you everyone. If you have any question. Ma'am, this is Sunita Kandoya. I want to share something. Can you hear me, ma'am? Yes, clearly. मैम कल मैंने जब मिरर में प्रैक्टिस करी, पहले तो मुझे रोना आया बहुत, बट उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगा. वो सो मुझे लग रहा था ये भी कर लूं, वो भी कर लूं. आई वाज फीलिंग सो हैप्पी. थकने का नाम नहीं था. ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे. So it's So whatever your feeling is, it's okay. अगर आपको कुछ भी ऐसा नहीं फील हो रहा जो बाकियों को फील हो रहा है, even that's wonderfully okay. Everything is okay because that's the beginning of you being with the person in the mirror. Please. Because मैंने आज तक कभी किया नहीं था. हाँ, and please don't even try to copy someone else. I request you. नहीं आपको नहीं कह रही, मैं सबको कह रही हूँ कि you need not to even try to feel the experience other person shared. कि अरे सुनीता को, आपका नाम सुनीता है? हाँ जी. कि सुनीता को पहले तो बहुत रोना आया, फिर उसको खुशी हुई. चलो मैं भी मिरर में देख के कोशिश करता हूँ, पहले रोता हूँ फिर खुशी होती है. No, this is crazy foolish thing. So nothing, ये हम शेयर कर रहे हैं क्योंकि हर कोई इंसान अपना शेयर कर रहा है, but this has nothing to do with the assignment. You need to do the assignment the way it is. अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करके आंखों में देखना है और उसके बाद जो भी आपको शुक्राना आ रहा है उसको शुक्राना देना है. Thank you बोलना है. Thank you, thank you, thank you, and then 3 things that you can be grateful for. And whatever your mirror will, maybe it won't speak to you. It's okay. It won't do anything. It's okay. Please don't be so hard on yourself. So please be it really playful. मतलब enjoy करना है अपने सिर्फ जैसा भी हो रहा है वैसे. ठीक है? And thank you for sharing. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Ashwin ma'am, I'll take 1 minute. मैम मैंने जब ये प्रैक्टिस कल की ना, तो फर्स्ट टाइम आई वाज नॉर्मल, छोटी सी स्माइल थी फेस के ऊपर, बट जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करती रही मुझे बहुत जोर जोर से हंसी आती थी. वो एक हिचकी वाली हंसी जो निकलती है ना अंदर से, शायद जब हमें कोई गुदगुदी करता है तो हम रोक नहीं पाते उस हंसी को, वो वाली हंसी बहुत ज्यादा आई एंड आई थॉरली एंजॉयड इट. So enjoy. बहुत अच्छा था जो भी था, बट बहुत जोर जोर से हंसी आती थी. जब हंसी आ रही है हंस लो, जब रोना है रो लेना. जब खुशी हो रही है ले लो, जब दुख होगा तब भी ले लेना. So mirror never speak lie. So whatever it's giving you, उसको आपने कुछ नहीं करना है, जो भी है उसके लिए grateful होना है. जो भी वो दे रहा है, be grateful about it, and that's the beginning of a beautiful journey. By being with the person who's there in the mirror. Okay, so all the best. Thank you so much. All the best. जैसे योगेश्वर आपको मैं बता देती हूँ because today is about last session. आपका जो भी अपने बारे में कहना है या कहना, मतलब अगर आप English reading के लिए, I could see that you need to read in English with the person in the mirror. Yogeshwar, you are on the call. Okay, if you're not on the call, you can we can say it in the WhatsApp group. So it will really work a lot. Like बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए if you can talk to the person in the mirror in English, or you can be really grateful about whatever speaking of English you can do in the mirror. तो आप जब grateful होना शुरू करोगे, आपका दुनिया अपने आप transform होगा. So all the best, Yogeshwar, because you had that question, so I answered it. Okay. So anything else before we say goodbye for the day? I can't hear. आप नाम लीजिए. पंकज बोल रहा हूँ मैं. हाँ जी पंकज. ये जो आज का असाइनमेंट है ना, तो जो असाइनमेंट नंबर 1 है ये तो क्लियर है, जैसे हम पहले करते रहे. जो असाइनमेंट नंबर 2 है, एक मिनट, बहुत डिस्टर्बेंस है. I can't hear it. There are multiple disturbance. मेरे यहाँ से नहीं है, मैं because I am in. होल्ड कीजिए, मैं कर. Any please mute everyone except पंकज. अपने आप को अनम्यूट कीजिए. हाँ जी, अब ठीक है, अब नहीं आ रहा. क्वेश्चन पूछिए. तो पहला क्वेश्चन, जो पहला असाइनमेंट है आज का, वो मेरे को क्लियर है, जैसे हम पहले करते रहे. जो असाइनमेंट नंबर 2 है, ये मेरे को
आपने पहले एक्सप्लेन भी करा है, लेकिन मेरे को कई बार ये ओवरलैप करता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज जो पहले मैं 10 ग्रेटिट्यूड लिख रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि उसमें से भी कुछ इसके अंदर आ रहे हैं, बिकॉज जब मैं 10 ग्रेटिट्यूड लिखता हूँ उसमें से डेफिनेटली जो पिछले दिन के कुछ होते हैं वो मैं 10 ग्रेटिट्यूड या उससे ज्यादा में लिखता हूँ, तो आई एम नॉट एबल टू not very clear on the assignment number 2 for today. If you can show a little bit guidance on that. हाँ, तो ये एक तरह की टू डू लिस्ट है, एक तरह की जो आपके दिन के अंदर पिछले दिन में हुआ, जो आपने आई विल रिपीट इट अगेन फॉर एवरीवन बिकॉज आई नो ये वाली, तभी मैं बीच बीच में क्लैरिटी ला रही थी, क्योंकि कई बार एंड में आकर लोगों को लगता है कि ये तो सेम है, ये सेम नहीं है। पहले आप अपने काउंट द ब्लेसिंग्स करेंगे, जो काउंट योर ब्लेसिंग्स है वो आपने 10 लिख ली, अब उसको साइड कर दीजिए। अब आपने रिमेंबर द मैजिक बाय काउंटिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ यस्टरडे। अब जैसे मैं आज बैठी हुई हूँ, मैंने ब्लेसिंग्स लिख ली जो लिखना है, अब मैं कल पूरे दिन को स्कैन करूंगी दोबारा से। कई बार जो हम ब्लेसिंग्स लिख रहे होते हैं वो हमारे ड्रीम्स के बारे में भी होती है, वो हमारे खाने पीने के बारे में भी होती है। जैसे कि कल अगर सपोज होगा तो आई वुड से कि there's so many things that can be only blessings, but when you go through the day, it may be कि आपने स्टाफ मेंबर के साथ कोई बातचीत करी, या अगर मैं अपनी बात करूं तो कल मेरे काउंसलर्स जो कोर्स हमारे सेल करते हैं, तो मैं उनके साथ अगर मैं बातचीत कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि हाँ वो मेहनत कितनी कर रहे हैं फिर भी उनके रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, और उस चीज के लिए मैं उनको कई बार डांट भी देती हूँ। तो मैं उस मोमेंट के अंदर ग्रेटिट्यूड ढूंढने की कोशिश करूंगी, कि ढूंढने की कोशिश करूंगी कि इस मोमेंट पे, और जब मैं ढूंढ रही हूँ इस टाइम पे, तो आई कैन बी ग्रेटफुल अबाउट इवन इन दिस टाइम व्हेन दे आर सिटिंग एट देयर होम। एक औरत जो बेसिकली वैसे तो वो कोऑर्डिनेटर है या काउंसलर है, पर ऑफिस में बैठकर उसकी एफिशिएंसी अलग होती है, पर जब वो घर पे बैठी है, घर में बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी है, इन लॉज भी है, उसको काम भी करना पड़ेगा, किचन का काम भी करना पड़ेगा, और जिस तरह के इनके फाइनेंशियल्स होते हैं, आई नो उनके घर में मेड्स शायद ना हो, तो उसको झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े भी करना है, और उसके बाद उसको अपनी जॉब भी करनी है, जो वर्किंग फ्रॉम होम पीपल है। तो आई कैन बी रियली रियली मोर ग्रेटफुल अबाउट दैट पर्सन, the way she's handling her life, her kitchen, her children, her husband, everything. And that's the part of the second assignment, where you can be actually digging down the reasons to be grateful about. So ask yourself the question, what are the good things that happened yesterday? So अगर उस औरत ने सिर्फ कॉल भी कर ली है ना, 10 कॉल्स भी कर ली हैं, that's a good thing for me, although she didn't cause any registration. So that means मैं सोचना शुरू हो रही हूँ ना इस बारे में, तो scan the surface of yesterday until you feel satisfied that you have remembered and written down all the blessings of the day. So while looking at the blessing further, और ज्यादा स्कैनिंग करते टटोलते हुए, मैं इसके लिए भी थैंकफुल हो रही हूँ इस समय कि अभी जैसे हमारा जून तक फिर से आ गया है, लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है, जून में खुलेगा, तो यानी एक औरत जो बेचारी घर पे बैठी है, और हमने पहले मंथ की सैलरी के अंदर ही जो हेल्प करनी थी करी, उसके बाद हम नेक्स्ट मंथ की सैलरी या उसके बाद की सैलरीज के अंदर अभी हेल्प भी नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने कुछ और प्लान निकाले हैं कि इंसेंटिव प्लान निकाल लेते हैं या कुछ और प्लान निकालते हैं। And that lady is still working, although she's not getting her salary, full salary for the month. I can be more, I can feel the gratefulness deeper and deeper when I'm doing this exercise. So as you remember, और obviously ये सब बातें आप शायद blessings वाली लिस्ट में नहीं लिख रहे हैं. So as you remember each one, simply say the magic words thank you for it in your mind. तो हो सकता है मैं उस सिचुएशन के बारे में थैंक यू बोलना चाहूँ, माइंड में बोल लो, लिखना चाहो पेपर पे लिख लो, आपकी चॉइस है, बट माइंड में बोलने की अपॉर्चुनिटी आपके पास फर्स्ट वाले असाइनमेंट के अंदर अलग तरह से काम करना है, इसमें अलग करना है। आई होप पंकज इट्स मेकिंग सेंस टू यू। यस यस, एक और छोटा सा फॉलो अप, जैसे पहला तो क्लियर है, वो लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 10 ब्लेसिंग, इसके अंदर लिख भी सकते हैं या सोच कर भी कर सकते हैं स्कैन, जो स्पेसिफिकली यस्टरडेज की ब्लेसिंग है। असाइनमेंट आप फर्स्ट वाले की बात कर रहे हो? नहीं, फर्स्ट वाला तो क्लियर है एकदम। मैं फर्स्ट वाले में तो आपने पहले लिखना है, वो लिख लिया, लिखने के बाद पढ़ना है, पढ़ना मतलब प्रॉपर पढ़ना है, और उसके बाद थैंक यू बोलना है। फीलिंग ग्रेटिट्यूड आप उसको साइड कर दीजिए प्लीज, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। अब आप पूरे दिन के लिए, हो सकता है कि मैं कल के लिए लीची, मतलब पूरे दिन को स्कैन कर रही हूँ, करते करते मेरे को लीची बहुत अच्छी मिली, तो लीची का जैसे मैंने लिखा कि हाँ लीची खाई, अब लीची खाते हुए उस समय मेरे को नहीं याद आया, इस समय मैं ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ इवन द लीची, द पर्सन हु हैज ग्रोन इट, मैं जिसने इतना मीठी लीचियों का पेड़ लगाया, मैंने तो नहीं लगाया ना, किसी और ने लगाया, और उसने वो पेड़ उगाया, उसकी लीचियों को इतना उसने नर्चर किया, फिर उसने प्रॉपर ट्रांसपोर्टर को दी, वो यहाँ तक दिल्ली तक लाया, दिल्ली में लाके जिस फ्रूट सेलर ने भेजा मेरे घर तक आई, उस लीची को खाते खाते उस मोमेंट पे जो मैंने मिस कर दी अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग ग्रेटफुल, आई कैन डू इट राइट नाउ।
सो और जितना आप डीप तक जाओगे उतना आपकी वो जो ग्रेटफुलनेस होती है वो ज्यादा आपको फील होनी शुरू हो जाती है। अगर आपको फील ही नहीं हो रही, आप कहाँ पहुंचोगे यार पेड़ वाले तक? आप उस बंदे तक नहीं पहुंच सकते हो जिससे आप खरीद के लाए हो उस रेडियो। आपको पैसे दिए खरीदी है, इसमें कौन सी बड़ी बात करी है? तो ये जो प्रोसेस है ये आपको अपॉर्चुनिटी देगी टू फाइंड द ग्रेटिट्यूड बाय डिगिंग इट। ठीक है? ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपका? इट शुड नॉट बी रिटन, जैसे जो इट्स बोथ वे। एक बोल रहा है आप रिटन लिस्ट भी बना सकते हो एंड यू कैन रीड इट आउट लाउड इन योर माइंड, बोथ वे। जैसे जरूरी नहीं कि मेरे को लीची वाले को शुक्राना करना है, मैं पूरे दिन को स्कैन करने की अगर मेरी क्लैरिटी है माइंड के अंदर तो आई थिंक आई कैन डू इट इन माइंड। बट अगर आपको लग रहा है बहुत ही क्लस्टर बना हुआ है, सब कुछ याद नहीं रहता, तो फिर लिखते लिखते याद आएगा ना आपको। ठीक है जी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ओके, सो आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर आंसर्ड. If you have any question, please ask it on the group. If you have it right now, please ask it fast. It's 8:23. Okay, and I'm really requesting you all to please share your videos of even a smallest thing that you experience. And before we going, राजन जी आ गए हैं हमारे सामने. अश्मी जी, चार्ली चैपलिन को जरूर याद करना है हमको रोज. बिल्कुल, चार्ली चैपलिन क्या बोलता है राजन जी. और राजन जी प्लीज आप अपनी क्लास के लिए बताएं जो हम लोग कर रहे हैं कल से, आप प्लीज बताएं. Okay, so from tomorrow we are starting a new from tomorrow 2:30 to 5:30. So tomorrow is the first day. 3 दिन का ये हमारा वर्कशॉप है on manifestation and law of attraction, and this is going to be the best workshop whatever I have done till date. बहुत बढ़िया होने वाला है. उसको मैंने काफी स्ट्रक्चरिंग कर दिया हूँ मैंने, and I'm so organized. मेरे पूरे all day 1, day 2, day 3 पूरे videos and everything is set. So I understand this is going to be the best workshop. Yeah. And I'm expecting around 700 to 800 participants. So Wow. we are only accommodating 500 people. So already हमारे I think about 400-500 people have already registered, and it's a free workshop, so anybody can join. And I invite everybody on the group to kindly participate, because ये जो manifestation law of attraction है वो हम जितनी बार करते हैं कुछ ना कुछ नया ओपन होता है हर किसी के लिए. और जैसे मैं भी जैसे आपको बता रहा हूँ, मतलब even I have been doing this workshop for quite some time. There were a lot of, in the last batch, there were a lot of chief engineers from Nagpur, from Mumbai. So they are all top people, collector level के लोग थे वहाँ पर. Even 1 or 2 MLAs were there. Now this time, lot of people from IIT alumni में, उन्होंने, somebody who had participated in my workshop last time, he has recommended all the alumni of IIT graduates and all. So a lot of people from a lot of countries also are participating. So I invite everybody to kindly take the advantage of this workshop. और ये 3 दिन का है और 3 घंटे का है. तो Ashmi ji is also she is also co-leading, conducting. Yeah, she's conducting. also conducting. So आपकी वजह से, बिकॉज आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारे को भी एक अंदर से इंस्पिरेशन होता है कि इवन वी कैन कम फॉरवर्ड एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी. Thank you so so much. Thank you for being so much there for the people around you. तो and there are a lot of nice videos what I am going to share. तो हर एक टॉपिक को मैंने एक वीडियो निकाला है, तो which I will not show in the workshop because time limitations है, और people cannot sit more than 3 hours at a time. तो मैं क्या करने वाला हूँ, वो पूरे वीडियोस आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डालने वाला हूँ, वो इन रिलेशन टू दैट टॉपिक. तो आपको उस टॉपिक को पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग पूरा समझ में आ जाएगा. So this is how I have structured it, and this will be around 9 hours of the workshop. 3 घंटे का tomorrow, Tuesday, Wednesday, Thursday. Plus I will have some question answers and sharing also before the class and after the class. So this is how I have structured the whole program. एंड जिन लोगों को नहीं पता है कि मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है और कितना ज्यादा बेनिफिट कर सकता है, प्लीज ज्वाइन दिस क्लास. एंड आप फ्री दे रहे हैं, पर मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कोई ना कोई डोनेशन आप जरूर कराएं, क्योंकि ये क्लास जब हम लोग कभी कहीं और करते हैं, हमारे और फ्रेंड्स जो लीड करते हैं, ये क्लास सेम डिट्टो क्लास, सेम सब कुछ मटेरियल, मिनिमम 15,000 की पर डे क्लास होती है. हमने जब की है तो 15,000 दिए शायद राजन जी. Yes, 12,500 था और प्लस जीएसटी, एंड आई हैव डन. नहीं, आप ये सोचे कि हमारा जब वो सेशन में आया था ये वाला चैप्टर, तो पर सेशन हमें 25,000 कॉस्ट करता था वो, जो आप लोग अटेंड कर रहे थे, आते थे. तो ये जो क्लास की एक्चुअल वैल्यू है वो
वो नॉर्मल इंडियन रुपीस के अंदर 25,000 रुपए की वैल्यू है। तो 25,000 का कोर्स राजन जी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए इतना बड़ा दिल रखते हैं। So, Thank you so and I much. know the way you teach, the way you explain, it's much better and much more understandable than the actual class. So, because आप सच में चाह रहे हैं कि हर इंसान की जिंदगी में इससे बेनिफिट हो, so आपकी अप्रोच बहुत डिफरेंट है। So, I really thank you for giving us this opportunity. अगर आप ग्रुप पे शेयर कर पाएं आज लिंक, ताकि ये सब लोग अपने बच्चों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, please come with all your family and your loved ones. Everyone will get a lot of benefit. ठीक है? So sure, I will do that. I'll share all the links and everything. So kindly join the group. And so I'm forming. So हमारे 2 WhatsApp के group more or less पूरे होते आ रहे हैं. 4A, 4B. So what I'll do is I'll share a new group called as 4C. क्योंकि WhatsApp के limitations है, तो we can only accommodate 250 people. तो 4A, 4B का नहीं. अब मैं आज 4C का मैं link आपको भेज दूंगा. So you will get all the same messages. Everything will be the same. So I'll share the link today and the information of the workshop also. Kindly I request you and kindly do it with your full family, क्योंकि अगर manifestation जो है अगर हम पूरी family के साथ करते हैं तो ही ज़्यादा powerful होता है, and this is how it works. And I think from this workshop itself I'm so confident that to continue the journey after manifestation and law of attraction, फिर ये magic किताब और ज़्यादा समझ में आ जाती है. that's magic like किताब opens up. Yeah, it really opens up, because only after understanding this subject of manifestation, हम जो चाहते हैं वो उसको कैसे पाना, उसकी साइंस क्या है, क्योंकि हर दिन आपको I will take you to the journey of how to improve your health, how to take care of your health. आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी जिंदगी कैसे बढ़ सकती है, या जैसे अश्मी जी ने बताया था बीच में कि भाई there is some incompletion, वो पार्ट इसमें नहीं आएगा, मेरे में इसमें आएगा प्लेसिबो इफेक्ट, नोसिबो इफेक्ट, फेथ हीलिंग, उसके बाद में प्रेयर हीलिंग आती है. उस तरीके से अगर आपके पेरेंट्स ने भी अगर उस बात को चैप्टर को सुन लिया, आई थिंक दैट विल कम ऑन डे 2. सो द वे आई हैव स्ट्रक्चर्ड इट, इट विल कम ऑन डे 2 एंड डे 3 विल कम इज अवर एजिंग एंड अबाउट वेल्थ. अगर किसी को भी पैसे को लेके प्रॉब्लम्स हैं, सो व्हाट इज देयर बिलीफ, व्हाट इज द सॉल्यूशन, हाउ यू शुड थिंक अबाउट मनी एंड हाउ टू अट्रैक्ट मनी. So day 3 will be very important. Don't miss it, because I'm going to teach you the 5 ways to manifest. आपका वो हो जाएगा पूरा, and it will be a complete workshop. And उसके बाद में जब आप मैजिक किताब करेंगे तो उसकी लेवल ही अलग हो जाएगी. So everyone, nothing is more important than being in the session with the manifestation and law of attraction with Rajan ji on tomorrow. 3 दिन का ही है और 3 घंटे का ही है हर दिन पर. So schedule yourself and be there. एंड थैंक यू. अब हम राजन जी क्लोजिंग करेंगे. उससे पहले मैं एक आंसर जरूर देना चाहती हूँ. चैट पे आया है अबाउट एनीथिंग. कोई भी आप वीडियो देख रहे हैं, कोई भी आप, चाहे वो वीडियो किसी की भी हो, सदगुरु जी की हो या किसी भी और जो भी इवॉल्व्ड गुरुज हैं हमारे, अगर आप उस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हो अपने लाइफ में, जैसा वो बोल रहे हैं वैसा प्रैक्टिस कर रहे हो, उनका सिखाया हुआ आपको कितना गुना फल के आपको रिजल्ट देगा, आपको पता भी नहीं है. एंड दोज हु आर प्रैक्टिसिंग दिस गुरुज, दे आर ब्लेस्ड, दे आर रियली ब्लेस्ड. एंड दोज हु आर जस्ट लिसनिंग टू देम और सिर्फ सुनकर भूल जाते हैं, सोचना भूल जाते हैं, तो वो उनके उस कला का या उस विद्या का उतना फायदा नहीं उठा पाते जितना कि वो आपको देना चाहते हैं. सो ऑल द थैंक्स टू ऑल द ग्रेट गुरुज इन आवर लाइफ. एंड अगर हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी हमारी लाइफ इतनी सफल हो पा रही है. सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट कृष्णा जी. यस, थैंक यू मैम. थैंक यू. Just for knowledge, because in the courses of Sadhguru, वो सब क्लासेस में होते थे, उनके एक्सरसाइज होते थे हमेशा. Yeah, and if you are doing those practices, your life will be wonderful. Yes, it's really wonderful. I am doing the daily 21 days, 21 minutes my Sambhi Mahamudra and repeating it daily. Yeah, and if you proceeded with Upa Yoga, it will be rather great for every part of the body. Right. Upa Yoga and Shambhavi together are miraculous. In my family, दो आदमी वो भी उन्होंने योगा क्लास भी की है. They are also yoga teacher. Yeah, great. Wonderful. So all the best for practicing it more and more into your life. Wonderful. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you very much, ma'am. Thank you. Yes, please, Rajan ji. Thank you. So Charlie Chaplin said, "A day without laughter is a day wasted." So let us not waste our day.
So I'll teach you how to laugh. So laughing ka, it's actually a breathing exercise plus laughing. So you breathe once and say ha. Breathe to second, another time say ha ha. एक बार और breathe करिए, say ha ha ha. And everybody. Thank you everyone for being on call. Keep laughing. Keep having a wonderful day. Thank you. Thank you.